and assistant professors in the Department of Medicine. I would request Dr. Sabuhi, please highlight if my voice is clearly audible to you guys or not. Yes, you are clearly audible. Okay, thank you so much, Dr. Savoy. So, candidates, this is our third course that we are going to start from this Saturday, and we have been conducting the courses on talks and clinical long cases. This time, we have a short time left as CPSP has announced the schedule of medicine exam talks and clinicals in September. It is going to be start from the mid of the September, so we are left with a very short time. So dear candidates, what actually matters for us, for medicine candidates, is to get through this tough examination. uh, um, we have most of us would have gone through the TOEIC examination, and some would be appearing for the first time in their TOEIC examination. Candidates, in our clinical examination, the toughest part for us is in the long case. What I feel actually during our training sessions, we are not given a proper guidance about the long case, to how to start with the long case, how to carry on, and how to end with the long case. Trust me, in your exam, long case is purely a fun. It is a skill. It is not something that you are going to practice in your words while your exam preparation and then appearing. You think that I have done lots of practice, now I can get through it. In your examination, what matters is your confidence and the technique that you have achieved during your preparation. When after talks examination or after theory examination, we just start preparation for our clinicals. We just used to go to visit the wards, and we just do short cases, long cases. We just keep doing in every practice session. In every practice session, we make many mistakes, but we do not get proper technique. What I believe in your exam, on the day of the exam, it is the technique that is going to help you in going through this exam. Without technique, it is really very difficult to get through the long case. In the long case, you guys know very well that we are given 30 minutes, 30 minutes. And in these 30 minutes, we are supposed to cover entire long case. And it includes two parts. Number one is your history and other is your examination. Apparently, these 30 minutes appear quite enough time, but as a matter of fact, these 30 minutes are very short to take the history and do complete examination and then make differentials, summarize your case. So 30 minutes is not enough time, and you do not know which case is going to appear in your real exam day. You will be having two examiners who will be sitting straight away, straight in your hands, and they would be observing you. And it will be your day. You will be having sweating, palpitations. It is not in our hands. It is something, a sympathetic response. There would be a rush of epinephrine, norepinephrine in your body, and these epinephrine and norepinephrine are going to cause palpitations, sweating, and in that scenario, sometimes what happens, we forget many things. No matter, I have done practice for a month, for 2 months, for 3 months, but I do not have proper technique. So when I don't have a proper technique during the exam, I forget many things. So please, candidates, on your exam day, I would again insist, please learn a
technique how to do the long case. And this is the beauty of our course, that we would be focusing upon the technique. No matter my patient presents me with the blurring of the eye, vision, no matter he presents to me with headache, lower limb weakness, loses stools, shortness of breath, I don't know. I am not scared of any presenting complaint. What matters for me is I must have a proper technique to approach the patient, whatever his presenting complaint be. I should not be scared of the presenting complaint कि मेरा पेशेंट पता नहीं न्यूरो से आ जाएगा, पता नहीं यार यहाँ से आ जाएगा, तो मैं कैसे करूंगा, इस केस के इतने क्वेश्चन याद कर लो, ऐसा ये केस आए तो ये क्वेश्चन पूछने हैं। मुझे लगता है ये जो हमारा एक अप्रोच होती है, ये गलत अप्रोच है कि ये क्रोनिक डायरिया के लिए ये क्वेश्चन याद कर लें आप, और लोअर लिम्ब वीकनेस के लिए आप ये क्वेश्चन याद कर लें। अगर पेशेंट यूनिलेटरल वीकनेस के लिए आया है तो ये क्वेश्चन याद कर लें। अगर बायलेटरल लोअर लिम्ब वीकनेस के लिए आया है तो ये क्वेश्चन याद रख लें। देखें, देर आर हंड्रेड्स ऑफ द केसेस, देर आर हंड्रेड्स ऑफ द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, और आप कितना भी याद करने की कोशिश करें, एग्जाम के डे में आपने कुछ ना कुछ भूलना जरूरी है। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट भूल गए तो इट इज गोइंग टू बी अ ब्लंडर। तो हम क्या करते हैं इस कोर्स में, बेसिकली वी वर्क ऑन द टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक जो कि आपको एग्जाम के डे में हेल्प करे। आपका लॉन्ग केस चाहे लोअर लिम्ब वीकनेस के साथ हो, लूज स्टूल्स के साथ हो, टमी पेन, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक, कुछ भी हो आपके पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, आप उस वक्त सिर्फ वो टेक्निक अप्लाई करें एंड यू जस्ट डू इट। जो मेरा केस था लॉन्ग केस, आई कुड नेवर प्रैक्टिस ऑफ दैट केस। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वो मुझे वो एनकाउंटर होगा लॉन्ग केस। इन माय एग्जाम व्हेन आई पास्ड इट, आई हैड ओनली वन टेक्निक कि मेरे पास जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होगी मैं ये टेक्निक अप्लाई करूंगा एंड आई हैव टू क्रैक द केस। मेरा पेशेंट जो था, ही वाज हैविंग न्यूरोमोलाइटिस ऑप्टिका, जो कि हम मेडिसिन के रेजिडेंट्स, मैंने एटलीस्ट आई डिड नॉट सी अ केस ड्यूरिंग माय रेजिडेंसी डेज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वेंट थ्रू इट। इट इज नॉट बिकॉज कि मुझे न्यूरोमोलाइटिस ऑप्टिका का पता था, इट इज बिकॉज आई हैड द टेक्निक। And on your exam day, what matters most is your technique, how to take the history. ये जो 30 मिनट होते हैं, दे आर वेरी वेरी शॉर्ट। 30 मिनट में आपने हिस्ट्री भी लेनी होती है, इन 30 मिनट्स में आपने एग्जामिनेशन भी कंप्लीट करना होता है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हाफ एन आवर बहुत ज़्यादा है। आप में से वो कैंडिडेट्स जो कि फर्स्ट सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम अपीयर हो रहे हैं क्लिनिकल्स में, उनको इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होगा कि 30 मिनट्स इनफ नहीं है। या जो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, उनको इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होगा कि 30 मिनट्स इनफ नहीं है। हमारे रेजिडेंसी के डेज में मुझे एटलीस्ट आई हैव वर्क इन वन ऑफ द पाकिस्तान रेपुटेबल इंस्टीट्यूशन। I have worked in one of the Pakistan reputable institution, लेकिन I can say कि लॉन्ग केस जो है वो हमें प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया जाता कि आपने ऐसे स्टार्ट करना है, आपने इसको ऐसे कैरी ऑन करना है और इसको आपने ऐसे एंड करना है। तो हमारे जो कोर्स में, जो कि हम परसों से स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोर्स की जो भी आउटलाइंस होंगी वो मेरे इस सेशन के बाद डॉक्टर सबूई आप सबको एक्सप्लेन करेंगी कि हम कोर्स कैसे कंडक्ट करवाएंगे और कितने सेशंस हम कंडक्ट करवाएंगे, पार्टिसिपेंट्स को कैसे पार्टिसिपेट करना है। सो द होल सिनेरियो हैज टू बी एक्सप्लेन्ड बाय डॉक्टर सबूही। Now, I would be talking about the skills of history taking के history ली कैसे जाती है। So first of all, whenever you are going to appear in your exam, जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे तो आपको एक वाइट पेपर जो कि बिल्कुल ब्लैंक होगा आपको दिया जाएगा, एंड यू विल बी गिवन अ पेंसिल और अ पेन आपको नोट डाउन करने के लिए। सो आपको अपने साथ किसी नोट्स को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका लॉन्ग केस स्टार्ट होने वाला होगा, आपको लॉन्ग केस स्टार्ट होने से पहले आपको एक वाइट शीट दी जाएगी एंड यू विल बी गिवन अ पेन और अ पेंसिल to note down the important things related to the patient. उसके बाद क्या करना है, डॉक्टर साहब कैन यू प्लीज चेंज स्लाइड। जी,
तो जब भी आप हिस्ट्री लेना स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यू हैव टू बी वेरी वेल ड्रेस्ड ऑन द एग्जाम डे। आपका जो है प्रॉपर लुक होना चाहिए। यू मस्ट बी वेयरिंग वाइट कोट एंड यू मस्ट बिहेव इन डिसेंट मैनर्स, ओके। अब आपको जब कहा जाएगा कि डॉक्टर साहब दिस इज योर पेशेंट एंड टेक द हिस्ट्री एंड डू द रेलेवेंट एग्जामिनेशन, बस आपको सिर्फ यही कहा जाएगा। आपने इन हुए, आपने एग्जामिनर्स को ग्रेड किया, एग्जामिनर्स ने आपको कमांड दे दी। नाउ आपके पास 30 मिनट्स में इट इज यू एंड योर पेशेंट, दैट्स इट। इन 30 मिनट्स में आपके जो एग्जामिनर्स हैं वो अपनी सीट पर बैठकर आपको देखते भी रहेंगे, जज करते रहेंगे। और कुछ एग्जामिनर्स ये भी करते हैं, जैसे मेरे एग्जामिनर्स थे, वो अपनी सीट से उठकर वो बिल्कुल मतलब अपनी पोजीशंस चेंज करते रहेंगे। वो आपके स्किल्स को देखते रहेंगे कि आप हिस्ट्री कैसे लेते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है पेशेंट के साथ, और आप एग्जामिनेशन कैसे कर रहे हैं। तो एग्जामिनर्स जो होते हैं कुछ कुछ वेरी शार्प होते हैं, तो वो हर चीज नोट डाउन कर रहे होते हैं। आप सबसे पहले आप पेशेंट को अटेंड करेंगे। और पेशेंट को जैसे ही अटेंड करेंगे, सबसे पहले उनको ग्रीट करेंगे, जी अस्सलाम वालेकुम। तो पेशेंट डेफिनेटली सलाम का जवाब देगा, वालेकुम अस्सलाम। तो आप कहेंगे, जी मेरा नाम डॉक्टर नज़ीर है, आपका नाम क्या है? तो पेशेंट का जो भी नाम होगा, मिस्टर एक्स से फॉर एग्जांपल पेशेंट्स नेम इज मिस्टर सलीम। तो पेशेंट कहेगा, जी मेरा नाम सलीम है। तो उसके बाद आप पेशेंट को इंट्रोड्यूस किया आपने कि मेरा नाम डॉक्टर नज़ीर है, पेशेंट ने कहा कि जी मेरा नाम सलीम है। मतलब ये एक छोटी सी रेपुटेशन डेवलप हो जाती है आपके दरमियान और पेशेंट के दरमियान। पेशेंट आपने ग्रीट किया, खुद को इंट्रोड्यूस किया और पेशेंट का नाम पूछा। उसके बाद आपने क्या करना है कि पेशेंट की बायोडाटा लेनी है, पेशेंट का कंसेंट लेना है पहले। पेशेंट को बताएंगे कि जी सलीम साहब, आज मैं आपसे, मेरा एक कंसेंट फिक्स्ड है, मैं आपसे आपकी बीमारी से मुतालिक चंद सवालात करूंगा। सलीम साहब, मैं आज आपसे आपकी बीमारी से मुतालिक चंद सवालात करूंगा, जिसके लिए मुझे आपका ताउन दरकार होगा, दैट इज इट। ठीक है। उसके बाद वो आपको कहेगा, ओके डॉक्टर साहब, गो ऑन, गो अहेड प्लीज। जी सलीम साहब, आपकी उम्र क्या है? आप प्रेजेंट उसमें बायोडाटा में आ जाएंगे। डॉक्टर डॉक्टर साहब प्लीज चेंज द स्लाइड। आप जो है बायोडेटा पे आ जाएंगे। बायोडेटा में नेम तो आपने ऑलरेडी पूछ लिया है, उसके बाद एज एंड ऑक्यूपेशन, एड्रेस। तो ये जो बायोडेटा वाला सेक्शन है ये बहुत ही बेसिक है, एंड ये तो हम सबको पता है, दैट्स इट। उसके बाद प्रेजेंटिंग कंप्लेन। अब प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो है ये एक ऐसी चीज है जिसका ना मुझे पता है ना आपको पता है। आपका पेशेंट आपके पास किसी भी कंप्लेंट के साथ आ सकता है, कभी एक कंप्लेंट, कभी 5 कंप्लेंट्स। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट कोई भी हो सकती है। कहानी स्टार्ट होती है फ्रॉम योर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, कि उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है। कभी कभी ऐसी होती है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, हम वहां सुनकर ही घबरा जाते हैं कि हम प्रोसीड कैसे करें, लॉन्ग केस को स्टार्ट कैसे करें। कुछ कुछ कंप्लेंट्स तो बहुत आसान होती हैं, लेकिन कुछ कुछ कंप्लेंट्स रियली इतनी टफ होती हैं। हमें सिर्फ फॉर एग्जांपल, योर पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद अ कंप्लेन ऑफ he is presented with a complaint of blurring of the vision. Now we are stuck, what to do now, where to start from. So presenting complaint, it can be one, it can be two, it can be many. There are many complaints, hundreds of the complaints. The patient can present with any of the complaint to you. At this moment, for example, your patient has presented to you with the complaint of anything, you have to take a pause, keep a silent for a second. Decide in your mind if this presenting complaint is pain related or not pain related. If this complaint is pain related, you have to go with a one formula. If this patient is presenting to you with a complaint that is not pain related, you have to go with another formula. लेकिन लेकिन
आपको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के बाद आपने 1 सेकंड के लिए पॉज़ रखना है, आपने कुछ देखना है। पेशेंट हैज़ प्रेजेंटेड टू यू विद द कंप्लेंट ऑफ ब्लरिंग ऑफ द विज़न। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिस्टेक जो कैंडिडेट्स करते हैं, देखें दिस इज़ नॉट अ लेक्चर, इट इज़ गोइंग टू बी अ सेशन। इसमें हम वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो हमारे कैंडिडेट्स मिस्टेक्स करते हैं, ताकि हमें पता हो कि जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या करते हैं वहाँ पर, हमें क्या नहीं करना चाहिए। जो ये वाला सेशन है, दिस इज बेस्ड अपॉन द स्टफ दैट वी हैव गॉट थ्रू डिफरेंट बुक्स एंड द experience teaching experience we have encountered with many students so far. So this session is actually a mix up of all these things. तो यहाँ पर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं विजन है, मतलब दोनों में होगा और वो start करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी presenting localize, always localize, uh, uh, like the बिल्डिंग कौन सी काम हो रही है, सीधी से देखने को रहा है, पेशेंट इज सेइंग वीकनेस, डोंट अज्यूम ऑल वीकनेस में होंगी, उनसे पूछती राइट पेशेंट इज डोंट नो के पेशेंट सबूत में बात क्लियर। डॉक्टर नज़ीर, आपकी वॉइस में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है। प्लीज लेट मी नो इफ नॉट। नो। ओके, प्लीज़ कैंडिडेट्स वेट। डॉक्टर नज़ीर दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं। 2 मिनट वेट कीजिए। Okay, I'm sorry. I'm sorry. Actually, there's a network problem at my end. That's why please let me know my not. हाँ, Can you, डिस्टॉर्शन। if anyone can hear me, please let me know if my voice get or not. Eh, okay, let me join the meeting again. I think there is a Dr. Savoy, can you please let me know? यस, यस डॉक्टर नज़ीर, योर वॉइस इज Is it ऑडिबल नाउ। audible now? यस, यस, इट इज ऑडिबल नाउ। Is it clear? यस, क्लियर।
Okay, I'm really sorry, candidates. Actually, there is a network problem at my end. I would try to fix it after today's session. So what the candidates do actually, say for example, your patient is presented to you with a complaint of pain in his lower limbs. So you have to actually localize the symptom. Okay, is this pain in right leg or left leg? अगर right leg में है तो is it in the thigh? Because right leg is really a big organ. It can be in your right foot, right lower leg, right thigh. So what candidates do actually, when the patient presents with any complaint, they start taking the history, and after some time they just get stuck somewhere, and then it really becomes hard for them to make the differentials. In your history and examination, try to make at least three differentials and maximum as many as you can. But from your history and examination, there should be at least top three differentials from overall these 30 minutes. So whenever the patient presents to you with any presenting complaint, मिसाल की तौर पर आपका patient आया है आपके पास हेडेक के साथ, तो आप उसको पहले लोकलाइज करें कि कहाँ पर दर्द है. हेड इज अ बिग एरिया. आधे सर में है या पूरे पेशेंट आया है, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो क्या है? इज इट पेन रिलेटेड और नॉट पेन रिलेटेड? क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता सोचने का कि आप सोचेंगे अच्छा पेशेंट जो आया है हेडेक के साथ, मैंने ये क्वेश्चन याद किए थे, अब मैं ये यहाँ पूछ लूंगा. पेशेंट टमी पेन के साथ आया है, मैंने ये क्वेश्चन याद किए थे, मैं यहाँ ये पूछ लूंगा. डॉक्टर साहब प्लीज मेक इट क्लियर. यस डॉक्टर नजीर, योर वॉइस इज क्लियर. बीच में कैंडिडेट्स थोड़ी एम आई डिस्टॉर्शन हुई थी, लेकिन अब क्लियर है. आई थिंक. अब क्लियर हो गई है. ओके ओके. um, okay, so please let me know if there is any distortion. Please let me know. ओके ओके, ठीक है, अभी ठीक है आवाज. So फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही पेशेंट प्रेजेंट करता है, आप जो है, हाँ जी, आप जो है पहले उसको लोकलाइज करें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि जो पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो पेन रिलेटेड है या नॉट पेन रिलेटेड है. क्योंकि ये जो अप्रोच हम जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एग्जाम के लिए, और एग्जाम की जो हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और प्रिपरेशन के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान, जो ये जो हम एक्चुअली जो हम प्रैक्टिस के दौरान जिसे सोचते हैं कि अगर पेशेंट टमी पेन के साथ आएगा तो मैं ये पूछूंगा, अगर लेम वीकनेस के साथ आएगा तो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा. आई थिंक दिस इज अ फेल्यूर स्ट्रेटजी. आपके पास एक सॉलिड स्केलेटन होना चाहिए. उसमें आपने क्या करना है कि आपका पेशेंट जिस किसी कंप्लेंट के साथ आए, आपको पता है कि मेरे पास एक फार्मूला है एंड मैं ये फार्मूला अप्लाई करूंगा और उसी फार्मूला के तहत मैं लेकर चलूंगा. तो जब भी हिस्ट्री लेंगे हम, तो पहले हम लोकलाइज करेंगे सिम्टम को. उसके बाद हमने ये डिसाइड करना है कि जो सिम्टम है ये पेन रिलेटेड है या नॉट पेन रिलेटेड है. अगर पेन रिलेटेड है सिम्टम, तो हम एक फार्मूला यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं सोक्रेट्स. अगर पेन रिलेटेड नहीं है, नॉट पेन रिलेटेड सिम्टम है, तो हम जो फार्मूला यूज करते हैं दैट इज ओडिपारा. डॉक्टर भाई प्लीज स्लाइड चेंज करें. Okay, sir, for example, your patient has presented to you with a complaint of headache. मिसाल आपका पेशेंट आया है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो है वो सर में दर्द है. ठीक है. नाउ यू हैव टू थिंक दैट दिस इज अ कंप्लेन विथ पेन. इट इज नॉट समथिंग विदाउट पेन. तो जब भी ऐसी कोई कंप्लेन आए विथ पेन, you have to start with Socrates. 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 So S stands for sight. कि आप सबसे पहले पूछेंगे क्या आपको सर में दर्द पूरे सर में है या आधे सर में है. अब आधे सर में है तो इट कैन बी योर माइग्रेन, इट कैन बी योर क्लस्टर हेडेक, it can be your giant cell arteritis, it can be your acute close angle glaucoma. अगर पूरे पूरे सर में हेडेक है तो इट कैन बी योर रेस्ट आईसीपी हेडेक, इट कैन बी ड्यू टू द chronic medication overuse.
This pain can be a stress headache, your tension headache. अगर किसी पेशेंट को पेन सिर्फ बैक ऑफ द हेड में है तो इट कैन बी समथिंग कॉल्ड meningitis, encephalitis. It can be your subarachnoid hemorrhage. तो आपने सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन वेयर इज द साइट, एग्जैक्ट साइट ऑफ द पेन, कि पेन किस साइट पे है। उसके बाद होता है ओ, ऑनसेट, कि ये पेन शुरू कैसे हुआ, ये ग्रेजुअली स्टार्ट हुआ है या अचानक सडनली स्टार्ट हुआ है। अगर सर का दर्द है मिसाल के तौर पर वो सडनली स्टार्ट हुआ है तो इट कैन बी योर स्ट्रेस हेडेक, यू आर स्टडीइंग एंड सडन sometimes you are studying or you are having some bad news, you get the stress and you just develop the headache. Migraine headache can start suddenly. Your cluster headache can start suddenly. Lekin sometimes some headaches they develop over time. Like a patient having intracranial mass, he can have a mild headache initially and later on the headache gradually develops. Like the patient with raised ICP, they can have a prolonged headache. So the second point in your Socrates is if the pain onset is gradual or sudden. And then is the character. In character, you are going to give hint to your patient. Okay, what sort of the pain is it actually? How do you feel? What is the character of the pain? आप उनको बताएं कि कैसा दर्द है, जैसे स्टैबिंग, कोई चाकू लग रहा हो या टीसे उठ रही हो या जलन हो रही हो या सूखा दर्द है, उनको वो दें, एक क्लू दें उनको, ताकि वो बताएगा आपको कि इसकी जो करेक्टर है वो ऐसा है। जैसे माइग्रेन या क्लस्टर हेडेक जैसे टीसें उठती हैं वो ऐसा होता है। जो रेस्ट आईसीपी का हेडेक होता है, नोएट का पेन होता है, वो अचानक आता है एंड इट इज वेरी वेरी सीवियर पेन। सो थर्ड पॉइंट इज योर करेक्टर ऑफ द पेन एंड फोर्थ पॉइंट इज रेडिएशन, कि जो सर का दर्द है ये सिर्फ सर में ही है या पीछे नेक में भी जाता है और आगे या जबड़े में आता है, चेहरे में, मतलब यहाँ से एक्चुअल साइट से डज इट रेडिएट एनीवेयर एल्स? Say, for example, if your patient says, yes, doctor, this pain radiates in my neck posteriorly, it can be your migraine, it can be your cluster headache, it can be your subarachnoid hemorrhage, it can be meningitis. These pain can radiate in the neck. If a patient says that, Dr. Saab, this headache actually radiates in my face, up till my jaw, this can be your giant cell arthritis. It is not your migraine. Actually, what I am going to do now, I am putting Socrates in front of the patient. Each point, each letter of the Socrates is giving me an evidence कि मेरा पेशेंट जो है उसकी हिस्ट्री कहाँ जा रही है। It can be any pain. It can be tummy pain. It can be your leg. You have to put forward Socrates. आपको पता होगा एग्जाम के डे में कि मुझे इतनी जो है ओवर थिंकिंग नहीं करनी। पेशेंट जिस कंप्लेन के साथ आए, आई हैव टू एनालाइज इट एंड आई हैव टू थिंक दैट कि ये पेन वाली कंप्लेन है या बगैर पेन वाली, क्योंकि हिस्ट्री में जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है वो HOPI होता है, उसको कैरी ऑन करना बहुत मुश्किल होता है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन तक तो हम पहुंच जाते हैं, उसके बाद HOPI में हम कभी कभी 8, 10, 15, 20 क्वेश्चन पूछ के स्टक हो जाते हैं, कभी हम क्या पूछें। अगर हमारे पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होगा, हमें पता होगा कि हमें क्या क्या पूछना है, तो थिंग्स वुड गेट इजियर फॉर अस। हम जो है किसी इंपॉर्टेंट चीज को जो है ना भूल नहीं पाएंगे। सो सोक्रेट्स में थर्ड चीज थी करेक्टर, रेडिएशन, एंड देन ए इज फॉर एसोसिएटेड सिम्टम्स। में क्या होता है कि आपने ये देखना है कि आपका पेशेंट जिस कंप्लेंट के साथ है उस सिस्टम है। तो हेडेक का जो है वो
पर्टिकुलर सिस्टम में जाकर उसके जो भी क्वेश्चन है वो पूछने हैं। अब न्यूरोलॉजी के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? हेडेक के साथ कोई लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्या आप कभी बेहोश नहीं है? इट मीन्स यू आर गोइंग टू डिवलप एसओएल इन इंट्राक्रेनियल। डॉक्टर नज़ीर, क्या आपकी आपको आवाज़ में कभी डिस्टॉर्ब। झटका तो नहीं, दो नहीं पड़े? क्या आपके में पता नहीं है? ऐसी headaches, edema, the patients with anxiety can have building up the vision. आपको इसके सारी हाथ में कमजोरी, आंख में कमजोरी नहीं हुई। या is it clear now? Dr. Saboo, is it clear now? थोड़ा सा और कोई और सेंटेंस बोलें, कोई डिस्टॉर्शन हो रही है, मतलब होती है उसके बाद ठीक हो जाती है। Dr. Saboo, is it clear now? यस। Okay, Kenneth, I apologize again for the network problem. So, actually, we were discussing about the associations. कि आपके association देखें, association is a difficult part in Socrates and Oedipus. हमें नहीं पता कि एसोसिएशन उस वक्त हमें क्या पूछना चाहिए। तो एसोसिएशन का एक सिंपल फार्मूला ये है कि आप ये देखें कि आपका पेशेंट जिस किसी कंप्लेन के साथ आया है, उस कंप्लेन का ताल्लुक किस सिस्टम से है। सिंपली उस सिस्टम के हर 8-9 सिस्टम्स हैं और हर सिस्टम के कोई 10 या 8 कुछ क्वेश्चंस हैं, आप वो सारे पूछ लें। अब हेडेक कैन बी एसोसिएटेड विद ब्लरिंग ऑफ विजन, with certain loss of the vision. It can be associated with any limb weakness. It can be associated with your fits. Okay. आप इसके साथ साथ आप चलने में कोई नहीं होगा, आप लड़खड़ाते तो नहीं है। Probably there can be a lesion in your cerebellar region. चीज का मतलब यह है कि प्लान के साथ उसने प्रेजेंट किया है, उस कंप्लेन का ताल्लुक किस सिस्टम से है। सो फॉर एग्जांपल योर पेशेंट हैज प्रेजेंटेड टू यू with tummy pain, so it is something associated with your GI. You are supposed to ask about nausea, vomiting, abdominal distension, yellowish discoloration of the eyes, loose stools, constipation, bleeding per rectum, hematemesis, any alteration in sensorium. तो आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर सिस्टम में जाकर उसके क्वेश्चन सारे पूछने हैं। उसके बाद आता है व्हाट टाइमिंग्स। देयर आर सम पेन व्हिच हैव स्पेसिफिक टाइमिंग। से फॉर एग्जांपल माइग्रेन, इट हैज नॉट स्पेसिफिक टाइमिंग। Migraine can occur at any time. Your cluster headache can occur at any time. But your raised ICP headache is more prominent in early in the morning. A patient with obstructive sleep apnea can also present to you with raised with headache. And such patients also have prominent headache in the morning. So sometimes what happens, this clue also gives some lead to the diagnosis. Every point is giving me an evidence where exacerbating factors and relieving factors. There are many exacerbating factors for headache. So for example, migraine in some patients gets aggravated with long journey. In some patients, it gets aggravated with stress, cheese, chocolates, nuts. If a patient says, yes, doctor, my headache gets aggravated whenever I eat chocolate, it is migraine. My headache gets aggravated whenever I have long journey. It is migraine again. Sometimes what happens, patient says, whenever I sneeze, I have headache. It is rest ICP.
Whenever I cough, strain, I have headache. It is a patient with raised ICP. Sometimes what happens, Dr. Saab, my headache actually worsens whenever I listen to bad news. Whenever I think tomorrow it is my paper, my exam day, my headache deteriorates. It is your stress headache, your tension headache. So you have to categorically ask from your patient if there is any specific aggravating factor that worsens his presenting complaint. Candidates do some mistakes over here. They just ask from the patient, अच्छा मुझे बताएं कि आपका जो सर का दर्द है किसी चीज से मतलब बढ़ जाता हो, खराब हो जाता हो, तो पेशेंट कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन आप पेशेंट से पूछें, कोई चीज खाने से, सफर करने से, सोचने से आपका सर का दर्द खराब हो जाता हो या बढ़ जाता हो, गिव हिम सम क्लूज, गिव हिम सम क्लूज कि आप कौन सी चीज से आपका सर का दर्द जो है वो डिटीरियोरेट होता है। उसके बाद रिलीविंग फैक्टर्स, आपने कभी महसूस किया है कि आपका सर का दर्द किसी चीज से बेहतर होता है? There are sometimes patients say, yes, doctor, my headache gets better with some medicines, paracetamol. Sometimes medicines are not useful in alleviating your headache. Like migraine headache इतना जल्दी नहीं जाता मेडिसिन से. Like a giant cell arthritis का headache इतना जल्दी खत्म नहीं होता मेडिसिन से. अगर पेशेंट को अक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा है तो उसका हेडेक जो है इतना जल्दी मेडिसिन से खत्म नहीं होता. Sometimes the patient usually said no, it doesn't get better with anything. This is again giving me a clue where my patient is leading to. And then ask about severity. Give him a scale कि आप अपने हेडेक को कितने नंबर देंगे. 0 का मतलब है कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी कोई दर्द नहीं, और 10 का मतलब है कि इतना शदीद दर्द है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. लेकिन इन आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस, डियर कैंडिडेट्स, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनका लिटरेसी स्टेटस जो होता है इतना अच्छा नहीं होता, तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाते. तो मैं यूजुअली नंबर के बाद एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूं कि क्या मुझे बताएं कि आप इस सर के दर्द की वजह से सो पाते हैं, अपने रोजमर्रा के काम काज कर पाते हैं? अगर पेशेंट कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे नींद ही नहीं आती, मैं काम भी नहीं कर पाता, इसका मतलब है कि द पेन इज मॉडरेट टू सीवियर. लेकिन अगर पेशेंट कहता है नहीं डॉक्टर साहब सो भी जाता हूं, काम काज भी कर लेता हूं, लेकिन सर का दर्द रहता है, इट इज माइल्ड. योर मॉडरेट हेडेक, सिवियर हेडेक कैन बी माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक, रेस्ट ICP. Stress headache is usually mild to moderate. Your cluster headache is highly severe headache. So whenever the patient presents to you with a complaint of pain, you have to put the formula Socrates. That's why please change the slide. And then comes what? OT-para. If a patient has presented to you, you are in the exam day. आपका पेशेंट आपके पास आया है एक ऐसी कंप्लेंट के साथ जिसका ताल्लुक पेन से नहीं है. Say for example, shortness of breath. Now, what will you do actually? There is nothing to localize in shortness of breath. मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको shortness of breath किस तरफ होती है. तो इन दिस सिम्टम देयर इज नथिंग टू लोकलाइज. आप स्ट्रेट अवे आप ओडी-पारा ले आएंगे, आप पेशेंट से कहेंगे ऑन सेट ये जो सांस की तकलीफ है शुरू कैसे हुई, अचानक शुरू हुई है या आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई है. the patient can say डॉक्टर साहब मेरी सांस की तकलीफ अचानक शुरू हुई है, around 3 to 4 hours before I was sitting all right, I was doing my work, अचानक मुझे सांस की तकलीफ शुरू हो गई है. What can it be actually? It can be your anxiety, panic attack, pulmonary embolism. It can be your tension pneumothorax. Sometimes the patient said, no, doctor, actually I'm having this shortness of breath for a very long time. It is as old as 1 month, 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks. Of course, this is not pulmonary embolism now. Of course, this is not a panic attack now. It can be something called as your ILD. It can be your
can be your COPD. It can be your repeated attacks of asthma. It can be even your congestive heart failure. These patients of shortness of breath. Again, I would say this is a classical format. This is going to help you guys in cracking and breaking your long case. You just attended your patient, introduced yourself, biodata is done, consent is done, biodata is done, then presenting complaint, you took a pause, you localized it, and then you categorized it. It is Odipara or Socrates. Okay, it is Odipara now, and you're starting with Odipara. It's a smooth flow. You need to think nothing about. Then duration is done, onset is done, then progression. प्रोग्रेशन का मतलब है कि आपकी जो सांस की तकलीफ है, जैसे 1 महीना पहले आप बता रहे हैं कि शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक ये बढ़ती जा रही है या वैसी की वैसी ही है या बेहतर हुई है? Sometimes you think that your ILT patients have worsening, shortness of breath. पता कैसे चलेगा डॉक्टर साहब? बढ़ जा रही है, बढ़ती जा रही है। कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि एक्चुअली पहले मैं अपने मार्केट तक जा सकता था आराम से, अब जो है मैं वॉशरूम तक नहीं जा पाता। It is worsening. The patients can have congestive heart failure. The patients with ILD can have worsening shortness of breath. The patients with COPD, with underlying heart involvement, can have worsening shortness of breath. And then ask about, is it improving since last 1 month? If yes, डॉक्टर साहब पहले बहुत ही अब बेहतर है, हो सकता है इनकी COPD is improving now. He had asthma previously, now he is feeling relieved. And then ask about aggravating factors. What worsens your shortness of breath? Is it lying down? सीधा लेटने से आपकी सांस की तकलीफ खराब तो नहीं हो जाती? Orthopnea. If yes, then congestive heart failure is there. If the patient says, डॉक्टर साहब चलने से मेरी सांस की तकलीफ खराब हो जाती है, it can be your COPD, heart failure, ILD. पर डॉक्टर साहब मैं रात को सोता हूं तो मुझे नींद नहीं आती, सांस फूलती है, it is congestive heart failure. And then ask about relieving factors. डॉक्टर साहब मैं अपने पीछे 4 तकिए देता हूं तो बेहतर फील करता हूं। डॉक्टर साहब अगर मुझे कोई धुआं सा मेरे सामने ना हो, कोई डस्ट ना हो तो आई फील बेटर। इट मीन्स ही कुड बी हैविंग COPD. डॉक्टर साहब व्हेन आई थिंक दैट कोई टेंशन की खबरें मैं सुनता हूं तो मेरी सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, ही इज इन पैनिक अटैक। And then associated symptoms like in Socrates, हमने जैसे Socrates में पढ़ा था, एसोसिएशन का मतलब क्या है? आप ये देखें कि आपका पेशेंट जो है आपके पास जिस कंप्लेन के साथ आया है उसका ताल्लुक किस सिस्टम से है। अगर उसका ताल्लुक जो है जिस सिस्टम से, आप उस सिस्टम के सारे क्वेश्चंस पूछ लें। हम आपको पूरी हिस्ट्री में हर सिस्टम के सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। हर सिस्टम के कोई 8 से 10 क्वेश्चंस हैं। मिसाल के तौर पर मेरा पेशेंट आया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का ताल्लुक हार्ट से है, इसका ताल्लुक लंग से है, इसका ताल्लुक ब्लड से है। द पेशेंट विद हार्ट फेलियर कैन हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो आप एसोसिएशन में पूछें, आपको ऑर्थोपनिया अगर पहले पूछ लिया दोबारा नहीं पूछें। PND प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया उसका पूछ लें। बायोलेटरल पीडर एडिमा का पूछ लें। इनकॉर्जमेंट ऑफ नेक वेसल्स, आपका जो है गले की जो नसें हैं वो फूल तो नहीं जाती, ये पूछ लें। पेशेंट को हो सकता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन द लंग्स। आप ये पूछें सीने में सीटियों की आवाज तो नहीं आती, सीने में दर्द तो नहीं है, खांसी तो नहीं है आपको, खांसी करने में बलगम तो नहीं आता, या ब्लड तो नहीं आता। हो सकता है पेशेंट को सांस की तकलीफ एनीमिया की वजह से हो रही है। आप ये पूछें कि आप जब बैठकर खड़े होते हैं तो आपको चक्कर तो नहीं आते, डिजीनेस, आपके आंखों के आगे अंधेरा तो नहीं आता, ब्लैकआउट्स, आपकी दिल की धड़कन बढ़ तो नहीं जाती, घबराहट तो नहीं आ रही, पल्पिटेशंस। तो आप एसोसिएशन में ये सिर्फ देखें कि उस कंप्लेन का ताल्लुक किस सिस्टम से है और उस सिस्टम के सारे क्वेश्चंस आप पूछ लें, दैट्स इट। और सी द ब्यूटी,
अब तक मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट देखी, क्या थी, वाज इट पेन रिलेटेड और नॉट पेन रिलेटेड। मुझे लगा कि पेन रिलेटेड है, I just came forward with Socrates. मुझे लगा कि it is not pain related. I just came forward with Odipara. अगर patient has presented to you with the complaint of both, one complaint is pain related, other is not pain related. So you have to put both formulas now. You have to say it. You have to put Odipara as well as Socrates. HOPI has three parts. Dear candidates, HOPI has three parts. Number one is either Socrates and Odipara. And other is, that's the way, please forward. Other is specific questions, specific questions. And third part is general questions. Specific questions are a bit tough. They are very hard. आप ओडिपरा सॉक्रेट्स पूछ लेंगे, आप जनरल क्वेश्चंस पूछ लेंगे, क्योंकि जनरल क्वेश्चंस 10 या 11 है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वही सिर्फ पूछने होते हैं हर कंप्लेन में। जनरल क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपका पेशेंट चाहे ओडिपारा में फिट हो रहा है, सॉक्रेट में फिट हो रहा है, कहीं भी आ रहा है, दुनिया जहां की किसी भी कंप्लेन के साथ वो प्रेजेंट कर रहा है, वो जनरल क्वेश्चन आपने पूछने ही पूछने हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपका पेशेंट जिस कंप्लेन के साथ आया है उस कंप्लेन से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन। अब ये वाला पार्ट आपको थोड़ा याद करना है बस। मिसाल, आपका पेशेंट आया है विद द कंप्लेन ऑफ डायरिया, लूज स्टूल्स। अब लूज स्टूल से रिलेटेड आपने पहले देखा कि दिस इज नॉट पेन रिलेटेड कंप्लेन, आपने ओडिपारा पूछा, ओडिपारा कंप्लीट हो गया, दैट्स डन। अब आपके पास स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन में आप पूछेंगे कि इसकी क्वांटिटी, कितने लूज स्टूल्स हैं आपको एक दिन में, 4 हैं, 5 हैं, नंबर 1। नंबर 2, ज्यादा आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं या कम क्वांटिटी में हैं। अगर ज्यादा आ रहे हैं इसका मतलब है कि द प्रॉब्लम इज इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। द डायरिया because of the small intestine, when there's a problem in the small intestine, we have bulky stools because majority of your food and fluid is not absorbed, it is excreted out. But if a patient is having problem in in a large bowel in the colon, he can have a very small amount of diarrhea each time. तो सबसे पहले पूछें उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके बाद उनसे पूछें कि क्वांटिटी कितनी है, क्या उसमें ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा। The diarrhea, because of the small intestine, is usually not associated with blood. The diarrhea with the problem in the large intestine is usually associated with the blood. It can be ulcerative colitis. It can be simple colitis. It can be your angiodysplasias. एंड देन टेनेस्मस, क्या आप जब पखाना करके बस करते हैं तो क्या आपको फिर भी हाजत रहती है? अगर टेनेस्मस है तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम इज इन द लार्ज इंटेस्टाइन, बिकॉज द प्रॉब्लम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज यूजुअली बिकॉज ऑफ द माल एब्जॉर्प्शन, एंड माल एब्जॉर्प्शन डजंट प्रेजेंट विद द टेनेस्मस, and the diarrhea because of the large intestine is usually because of the inflammation. Inflammation usually presents with tenesmus. The patient keeps sitting in the washroom for minutes, and for 10, 20, and 30 minutes. He thinks that something is coming out, but actually there is nothing coming out. Ask about mucus. क्या आप जब फ्लोट पानी डालते हैं तो वो आसानी से तैर जाते हैं या वो तैरते रहते हैं? तो अगर वो आसानी से फ्लश अवे हो जाते हैं, द प्रॉब्लम इज इन योर गट। अगर वो तैरते रहते हैं, दैट्स अ माल एब्जॉर्प्शन, द प्रॉब्लम इज इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। उसकी कंसिस्टेंसी पूछें, हार्ड है, उसमें खाने के पार्टिकल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर कंसिस्टेंसी में खाने के पार्टिकल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम स्मॉल इंटेस्टाइन में है, आपका फूड प्रॉपर्ली वहां एब्जॉर्ब नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ, सारा का सारा एक्सक्रीट हो गया है। लेकिन अगर प्रॉब्लम जो है लार्ज इंटेस्टाइन में है तो यूजुअली वाटर स्टूल्स होंगे, क्योंकि फूड तकरीबन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो चुका है अब। सो स्पेसिफिक क्वेश्चन हर कंप्लेंट के अलग होंगे। आपका पेशेंट आया है आपके पास विद कंप्लेंट ऑफ ब्लरिंग ऑफ द विजन।
अब ये जो blurring and vision है, it can be because of the problem in one eye or the two eye you have localized. It can be because of the conjunctivitis, keratitis, uveitis. It can be because of your optic neuritis. It can be because of your some problem in optic disc. तो आपने यहाँ पर पूछना है कि आपकी आंखों में खारिश तो नहीं है, आंखों से पानी तो नहीं आता, आंखें लाल तो नहीं हो जाती। अगर है, पानी आता है, खारिश है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से डिस्चार्ज है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम एंटीरियर चैम्बर में है। इट कैन बी योर केराटाइटिस, इट कैन बी योर कंजक्टिवाइटिस, इट कैन बी योर इट कैन बी योर uveitis. If the problem is in your retina, it can involve your optic disc. The patient can say that, Dr. Saab, I am having a blurring of the vision. I cannot see exactly with my one eye, optic disc atrophy. Optic neuritis, the patient can say, whenever I move my eyes, I have pain in my eyes. There can be color differentiation problems. The patient is unable to differentiate the colors. The patient can have diplopia. So we will discuss these all the complaints and specific question of each complaint in detail in our course. This is the difficult part of your history. And after the specific question, we have general questions. In general question, we have about 10 to 11 general question and that you can apply on any complaint. आपका पेशेंट अगर हेडेक के साथ आया है, उनमें भी जनरल क्वेश्चन पूछने हैं। आपका पेशेंट अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया है, उनमें भी ये जनरल क्वेश्चन पूछने हैं। आपका पेशेंट अगर ज्वाइंट पेन के साथ आया है, उनमें भी ये जनरल क्वेश्चन पूछने। किसी भी कंप्लेंट के साथ आपका पेशेंट आया है, आपने ये जनरल क्वेश्चन सबने पूछने हैं। हेडेक में फीवर हो सकता है, कोई ब्रेन एब्सिस हो सकता है कोई वायरल एनकेफेलाइटिस हो सकता है कोई मेनिंजाइटिस हो, उनमें फीवर हो सकता है बिल्कुल। हो सकता है कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हो किसी टॉक्सोप्लाज्मोसिस की वजह से, कोई लिम्फोमा है, व्हाटएवर, उनमें फीवर हो सकता है। वेट चेंजेस, हेडेक का वेट चेंजेस के साथ क्या ताल्लुक? पेशेंट से पूछें कि आपका वजन पहले से ज्यादा कम या बढ़ तो नहीं गया? पेशेंट कैन से यस, आई हैव लॉस्ट माय वेट। मुझे क्या पता पेशेंट को टीबी मेनिंजाइटिस है, ही इज हैविंग टीबी ऑफ द ब्रेन नाउ, या ट्यूबरकुलोमास हैं। I don't know the patient is having any malignant intracranial lesion. Lumps and bumps. Okay, the patient says that डॉक्टर साहब हाँ मुझे गर्दन में थोड़ी गलटियां हैं। डिसेमिनेटेड टीबी भी हो सकती है, पेशेंट को फीवर भी है, वेट लॉस भी है, और नेक में जो है वो लम्प्स भी हैं, तो हो सकता है डिसेमिनेटेड टीबी हो सकता है इनको कोई लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर लाइक लिम्फोमा हो, जिसने ब्रेन में भी इन्वेट किया हुआ है। हो सकता है कोई मैलिग्नेंसी हो दूसरी कोई जिसने ब्रेन में इन्वेट किया हो, उसकी वजह से इनको फीवर भी आ रहा है, वेट भी लूज किया है, और जिस्म में लम्प्स एंड बम्प्स भी हैं। आस्क अबाउट स्किन रैशेस। आपका जो आप पेशेंट से पूछें कि आपको जिस्म में कहीं कोई दाग धब्बे, कोई निशानात तो नहीं है? अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन की क्या सिग्निफिकेंस है स्किन रैशेस की? देखें, मिसाल आपका पेशेंट आया है डायरिया के साथ। अब डायरिया का, उनको जो डायरिया हो रही है वो क्रोन्स डिजीज की वजह से हो रही है। क्रोन्स में आपकी स्किन इन्वॉल्वमेंट होती है, देयर इज एरिथमा नोडोसम एंड देयर कैन बी पायोडर्मा गैंग्रीनोसम। आप इस फॉर्मेट को जब अप्लाई करेंगे अपने पेशेंट्स पे तो आपसे कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। उसके बाद ज्वाइंट पेन्स का पूछें, आपको जोड़ों में दर्द तो नहीं होता? जब सुबह आप नींद से उठते हैं तो आपके जोड़ अकड़ तो नहीं जाते? व्हाट गोज ऑफ ज्वाइंट पेन इन डायरिया? The patient with inflammatory bowel disease, they can have joint pain. What goes of uh, uh, what goes of headache with joint pains? The patient with giant cell arteritis, they can have joint pain. The patient with lupus cerebritis, they can have history of joint pain. The patient with any TB arthritis, they can have the invasion of TB in the brain simultaneously with fever, weight loss, and they can have joint pain. Then ask about palpitations. आपको कोई घबराहट तो नहीं होती? What goes of headache with palpitations? हो सकता है पेशेंट को जो है एनीमिया की वजह से हेडेक हो रहा था एंड पल्पिटेशन भी हो रही है। What goes of diarrhea with palpitation? Yes, the patient has nutritional deficiencies. Now it has led to the anemia, and anemia is causing palpitations. Ask about sweating. कि पसीना तो नहीं आता आपको? स्वेटिंग का डायरिया में, टीबी की जैसे हो सकता है स्वेटिंग, डायरिया हो रही है उनको, उसमें स्वेटिंग होती है।
हो सकता है इनको हाइपरथायरॉयडिज्म हो, उसकी वजह से स्वेटिंग हो रही है। हो सकता है इनको कार्सिनोइड सिंड्रोम हो, उसकी वजह से स्वेटिंग हो रही है, डायरिया भी हो रही है। हो सकता है पेशेंट को कोई लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हो और अभी बी सिम्टम्स के साथ आ रहा है स्वेटिंग एंड डायरिया। Sweating is the B symptom actually. Ask about fatigue. What goes off headache with fatigue? Again, anemia can have both things at the same time. The patient with chronic diarrhea and nutritional deficiency is now presented with fatigue. He can have giant cell arteritis with fatigue, dizziness, mood swings. These are the general questions that you have to ask from every patient. So HOPI is done now. Your Odipara Socrates number 1 part, specific question number 2 parts and general question number 3 part. आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर ये कंप्लेन आएगी तो मैं क्या पूछूंगा, कुछ भी नहीं. Put Odipara and Socrates, put specific questions, put general question. Odipara is done. Now come to the past histories. There are 5 past histories: past medical, past surgical, past transfusion, past hospitalization, past immunization. ये हम थर्ड ईयर MBBS से बढ़ के आते हैं. इनमें हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं याद करना. वी कैन आस्क अबाउट पास्ट मेडिकल. कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के बाद ही कोमॉर्बिडिटीज पूछ लेते हैं, वो भी सही है. देखिए 30 मिनट्स आपके हैं, उसमें आपने हर रिलेवेंट हिस्ट्री लेनी है. अब वो पहले लें बाद में लें, एग्जामिनर का इससे कोई ताल्लुक नहीं. मैं क्या करता हूँ हमेशा जो कोमॉर्बिडिटीज की हिस्ट्री है वो मैं हमेशा पास हिस्ट्री में ले लेता हूँ. Diabetes, hypertension, ischemic disease, any joint pains previously, any joint disease previously, any history of asthma previously, any history of malignancy previously. मैं पास्ट हिस्ट्री में तमाम चीजें पूछ लेता हूँ. उसके बाद पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री. अगर ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री है तो आपने उसमें ये जरूर पूछना है कि आपको पहले कभी ब्लड चढ़ा है, इफ यस कब. डॉक्टर साहब 1 साल पहले क्यों चढ़ा था? वॉज इट बिकॉज ऑफ एनीमिया और वॉज इट बिकॉज ऑफ अक्यूट ब्लड लॉस? अगर चढ़ा था तो कौन सा खून चढ़ा था? वॉज इट रेड ब्लड, वॉज इट व्हाइट ब्लड? आप पूछेंगे पेशेंट से, क्योंकि एग्जामिनर आपको इस बात में कंफ्यूज जरूर करेगा. आप कैंडिडेट से मिस्टेक करते हैं, अच्छा खून चढ़ा था, कितनी बोतलें चढ़ी थी, दैट्स इट. पता चला कि उनको जो है वो प्लेटलेट्स लगे थे, उनको डेंगू हुआ था. आप पूछें कौन सा ब्लड चढ़ा था आपको, सफेद खून चढ़ा था या लाल खून चढ़ा था. देन पास्ट हॉस्पिटलाइजेशन. आप पहले कभी किसी मर्ज के लिए हॉस्पिटलाइज हुए हैं? अगर हुए हैं यस, तो कब, कितने दिन, और वहां आपकी की क्या ट्रीटमेंट हुई थी? समटाइम्स दीज क्वेश्चंस हेल्प यू इन डायग्नोसिस. एंड देन पास्ट इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री. नेक्स्ट प्लीज. Okay, candidates, we will discuss all these things in detail in our regular classes. I'm just giving you an overview. उसके बाद personal history आप पूछेंगे. Personal history में appetite, diet, sleep, bowel habits we'll discuss because time is very short. My colleague has to speak also, so we would be discussing these things very quickly. Okay, next please. ओके, ड्रग हिस्ट्री. इंपॉर्टेंट अबाउट ड्रग हिस्ट्री इज दैट आपने जब ड्रग हिस्ट्री में पूछना है तो पेशेंट से पूछना है कि इस वक्त आप कौन सी दवाइयां खा रहे हैं, इस वक्त करंटली कौन सी दवाइयां खा रहे हैं. द पेशेंट वुड से डॉक्टर साहब आई एम ईटिंग पैरासिटामोल, आई एम ईटिंग दिस थिंग, आई एम ईटिंग एनसेड्स. उसके बाद आप पूछें कि माजी में आप ऐसी कोई दवाई खाते रहे हैं जिसकी जो कि आप लंबे टाइम के लिए खा चुके हों. मिसाल के तौर पर मेरा पेशेंट आया मेरे पास टमी पेन के साथ, ही इज एक्चुअली हैविंग पेप्टिक अल्सर. मैंने जब हिस्ट्री ली, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो अभी पैरास्टामोल खा रहा हूं एंड पैरास्टामोल इज नॉट यूजुअली काजिंग पेप्टिक अल्सर. जब मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि जो पास्ट में आप कोई दवाई खाते रहे हैं लंबे टाइम के लिए, उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर साहब मैं ये नेप्रोक्सिन खाता रहा हूँ, मुझे जोड़ों में दर्द है. समटाइम्स योर डायग्नोसिस इज हिडन ओवर हियर. या ऐसी कोई दवाई जो कि आप माजी में खाते आ रहे हो, जो कि आपने अभी बंद की हुई हो. कोई हकीम की दवाई तो नहीं खा रहे आप, कोई स्टीरॉइड्स, कोई चावल नमक गोली तो नहीं खाते आप. ये जरूर पूछना है इन ड्रग हिस्ट्री. नेक्स्ट प्लीज. ओके, फैमिली हिस्ट्री. अगेन, आपके घर में किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई दमे की शिकायत तो नहीं है, किसी की कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं है.
My patient has presented to you with a history of weight loss, and he just tells me that his brother is currently having tuberculosis. आपने फैमिली हिस्ट्री में तमाम चीजें टिक आउट करनी है, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का मसला, कोई कैंसर, कोई ट्यूबरकुलोसिस, या ऐसी कोई बीमारी जो कि किसी फैमिली मेंबर को लंबे अरसे से हो, लाइक फॉर एग्जांपल SLE, rheumatoid arthritis, and this time my patient is a female patient. She has presented to me with a history of joint pain. Okay, next please. And for a female patient, of course, we are going to take gynecological history. In gynecological history, we have 4 P's to ask. Number 1, periods. आपको जो महावारी है वो सही आ रही है? कितने दिन चलती है? उसमें कोई पेन, कोई तकलीफ तो नहीं होती है आपको? लेकिन this is something personal. Whenever you are going to ask gynecological history from your patient, you have to be very much careful. Take a consent. जी, मिसेस एक्स, मैं अब आपसे कुछ जाती नौयत के सवालात करूंगा जिसके लिए मुझे आपका ताउन दरकार होगा। पेश की माजरत, मुझे बताएं कि आपको माहवारी सही आती है? हर माह आती है? कितने दिन चलती है? उसमें कोई तकलीफ तो नहीं होती आपको? इस वक्त आप हमल से तो नहीं हैं? करंट प्रेगनेंसी, माजी में आपको 2 बच्चे हैं, वो कैसे हुए? नॉर्मल हुए थे या सी सेक्शन के साथ? प्रीवियस प्रेगनेंसी, उन प्रेगनेंसीज में आपको कोई पेचीदगी तो नहीं हुई थी? कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई थी? लाइक शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं हुआ था? कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ था? बच्चा कोई आपका जाया तो नहीं हुआ? हो सकता है पेशेंट को एप्ला हो। एंड देन पिल्स, इस वक्त आप अपनी प्रेगनेंसी को, हमल को रोकने के लिए कोई दवाई तो नहीं लेती? OCPs, आपका पेशेंट आपके पास आया है विद कंप्लेन ऑफ लेग पेन एंड शी इज एक्चुअली हैविंग स्वेलिंग इन द राइट लेग, एंड पता चला कि शी इज ऑन OCPs. It could be DVT. OCPs cause DVT because they cause thromboembolism. So in gynecological history, we have 4 P's to ask. Number 1, periods. Number 2, current pregnancy. Number 3, previous pregnancy. And number 4, pills. Next, please. And finally, you have just one thing to ask, that is Sajid T. S for socio-economic history. आप घर में कितने भाती रहते हैं? आपका घर में कितने कमरे हैं? प्रॉपरली हवा आती है या नहीं आती? आप जो दूध पीते हैं उबाल के पीते हैं, पानी उबाल के पीते हैं? सेक्सुअल हिस्ट्री, आपका इससे पहले, शादी से पहले या शादी के बाद किसी भी खातून से या किसी से भी आपके गैर अज़दवाजी ताल्लुकात हैं या नहीं? अगर हैं तो आपने एक्सप्लेन करना है किस नौयत के थे। क्या ओपन सेक्स था? अगर था, क्या आपने एहतियाती तदाबीर ली थी, जैसे कि प्रोटेक्शन के लिए आपने कंडोम का इस्तेमाल किया था या नहीं किया था? यू हैव टू आस्क अबाउट दिस। समटाइम्स हमारे जो एग्जामिनर्स होते हैं वो इसी चीज को लेकर पकड़ जाते हैं कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि आपके पेशेंट को HIV है, आपने सेक्सुअल हिस्ट्री तो पूरी ली ही नहीं। आपने उनसे कहा, उन्होंने कहा हुई है, सेक्सुअल कांटेक्ट रहे हैं। आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते, पूछते कितने का उनके जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितने लोगों के साथ रहे हैं, एक खातून के साथ, मल्टीपल खवातीन के साथ। अगर कोई खातून है तो एक मर्द के साथ या मल्टीपल लोगों के साथ। उनके सेक्स पार्टनर्स कितने रहे हैं? उनका जो इंटरकोर्स था वो प्रोटेक्टेड था या नॉट प्रोटेक्टेड था? इंटरकोर्स एनल था या पर वजाइनल था? यू हैव टू आस्क। कभी कभी ओरल इंटरसेक्स होता है, सिर्फ ओरल सेक्स होता है एंड वी जस्ट से इनको HIV है, तो आपने पूछना है कि किस नौयत का जो है आपका इंटरेक्शन हुआ है आपके पार्टनर के साथ। एंड देन ऑफ कोर्स स्मोकिंग हिस्ट्री, पीते हैं तो कब से पीते हैं, रोजाना कितने सिगरेट्स पीते हैं? अल्कोहल, आप शराब पीते हैं, आपका पेशेंट आपके पास टमी पेन के साथ आया है, ही इज हैविंग नाउ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। फाइनेंशियल सपोर्ट, घर में कमाने वाले सिर्फ आप ही हैं या आपके अलावा और भी कोई कमाई का जरिया है? इंजेक्टेबल ड्रग्स, आप कोई नशे और इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करते? जैसे कि हमारे यहाँ कराची में फुटपाथ पर लोग बैठे होते हैं,
कि वो जो इंजेक्शन होती है सिर्फ़ आप ही इस्तेमाल करते हैं या आप अपने कलीग्स के साथ शेयर भी करते हैं? डू यू शेयर द नीडल्स? Driving history and then traveling history. Next, please. So, candidates, this is the systemic history. Uh, in systemic history, you have questions from CVS. Next, please. CNS. अच्छा, ये जो हिस्ट्री है हम अपने सारे कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करेंगे। उसमें हर सिस्टम के 10-11 क्वेश्चन ज़रूर होंगे, जो कि आप जो एसोसिएशन वाला कॉर्नर है ओडीपारा में एंड सोक्रेट्स में, उसमें आपने पूछना है। आपकी अगर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जीआई से है, तो आप जीआई के सारे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर लंग्स से है, तो लंग्स के सारे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर सीएनएस के है, तो सीएनएस के सारे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर रिमेटोलॉजी से है, तो रिमेटोलॉजी के सारे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये जो हिस्ट्री है हम अपने सारे कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करेंगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। आई वुड हैंड ओवर द सेशन टू डॉक्टर सबोही। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर नज़ीर। पहले मुझे थैंक यू सर। बताइए कि मेरी आवाज़ क्लियरली ऑडिबल है? जी जी बिल्कुल। ठीक है। ओके, दिस वाज अ वंडरफुल सेशन अबाउट द आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग फॉर अ लॉन्ग केस इन क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अब हम जिस पार्ट पे फोकस करेंगे दैट इज़ बेसिकली द एग्जामिनेशन पार्ट, एंड फिर मैं आपको हमारे जो कोर्स का फॉर्मेट है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, इस लेवल पर अगर हम बात करें तो एक मिनट। क्या मेरी आवाज़, हेलो डॉक्टर नज़ीर? डॉक्टर सबोही, आपकी आवाज़ मैं तो क्लियरली सुन पा रहा हूँ, लेकिन कैंडिडेट से वॉल्यूम इज़ लो। I think there ये is Dr. Muhammad Usman Shahid. He says volume is low. Any other candidate, please? Can you please confirm if Dr. Sabui is audible or not? Anyone else? ओके। Normal. It's normal. Okay, Dr. Sabui, please continue. ओके। अच्छा, जब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर नज़ीर ने बताया, और कुछ हमारे पास हमारे नए कैंडिडेट्स भी होंगे जो कि अभी इन्होंने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया है और अब वो क्लिनिकल के लिए या अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं टू अपेयर इन टोक्स एंड क्लिनिकल। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर लें कि वी हैव, ओके, Dr. Sabui, can you please change the source of speaking? ओके, Like, ओके, I would मैं request डिवाइस you. चेंज करके, वेट Ji, वेट please change करें। the device. डॉक्टर नज़ीर, क्या अब मेरी आवाज़ क्लियर है? जी, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, लेकिन लेट्स आस्क फ्रॉम द कैंडिडेट्स कि उनको भी आपकी आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही। प्लीज़ बताएँ डॉक्टर सबोई की आवाज़ क्लियरली ऑडिबल है? डॉक्टर उस्मान थे They शायद। say it's better now. So Dr. Barak says it is still low. डॉक्टर बारक, आप अपनी सेल फ़ोन का वॉल्यूम प्लीज़ चेक करेंगे? उसमें देखें आपके वॉल्यूम कहीं वहीं से तो कम तो नहीं है? बिकॉज़ मैनी कैंडिडेट्स से द वॉल्यूम इज़ गुड। ओके डॉक्टर एजाज़, ओके, थैंक यू फॉर हाइलाइटिंग। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन की। तो जैसे एक फॉर्मेट आपको थोड़ा-सा मैं बताती चलूँ कि जब आप लॉन्ग केस के लिए जाते हैं, सो यू विल हैव टोटल ऑफ 1 आवर, ठीक है? 1 घंटे का आपके पास टाइम होता है। फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स आपको हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करनी होती है, एंड फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स जो आपके पास होते हैं, इसमें आप अपना केस एग्जामिनर को प्रेज़ेंट करते हैं। उसके बाद आप जो है वो उसका वाइवा देते हैं, which includes differential diagnosis and justification, investigations, management, and prognosis with recent advancement. तो जो फर्स्ट 30 मिनट्स हैं, सबसे पहले तो ये चीज़ आप क्लियर कर लें कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हमें एग्जामिनेशन किस मोमेंट पे स्टार्ट करना है। यूजुअली हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो ये है कि आप पेशेंट से को ग्रीट करें, आपने उससे हिस्ट्री लेना स्टार्ट की, और उसके बाद एट अबाउट 8 टू 9 मिनट्स उस टाइम तक आप कोशिश करें कि पेशेंट को टच ना करें, सिर्फ आप अपनी एच को कंप्लीट करें।
एट द स्टार्ट ऑफ 9th और 10th मिनट आप पेशेंट को, जब आप अपनी एचओपीसी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप पास हिस्ट्री को कंटिन्यू करें अलोंग विथ टेकिंग द कंसेंट फॉर एग्जामिनेशन। जिस तरह अभी आपको एक्सप्लेन किया गया है कि पूरी हिस्ट्री लाइक एचओपीसी के सारे कंपोनेंट्स लाइक ओटीपारा या सॉक्रेट्स है, देन आपके पास जो जनरल क्वेश्चंस हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, उनको कोशिश करें कि 8 टू 9 मिनट्स में कंप्लीट कर लें। उसके बाद आप पेशेंट से कंसेंट लें कि हमें एग्ज़ामिनेशन कि मैं आपका मुआयना करना चाहता हूँ, ठीक है, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। उसके बाद अब अपने क्वेश्चंस को भी कंटिन्यू रखें और साथ-साथ अपनी क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन को भी कंटिन्यू रखें। अच्छा, हम जब रेज़िडेंसी के फ़ेज़ में होते हैं तो लॉन्ग केस हमारे लिए एक नाइटमेयर होता है, और सबसे भी इम्पॉर्टेंट एक चीज़, एक क्वेश्चन जो हमारे कैंडिडेट्स के ज़हन में होता है कि क्या इन 30 मिनट्स में हमें हिस्ट्री के साथ-साथ सारी एग्ज़ामिनेशंस अलॉन्ग विथ जीपी सारी सिस्टमिक एग्ज़ामिनेशन क्या मतलब पूरी-पूरी करनी है, लाइक फ्रॉम द इंस्पेक्शन टू ऑस्कल्टेशन एंड वाइस वर्सा। सो दिस इज़ द आंसर इज़ नो। ऐसा नहीं है कि ये 30 मिनट्स, या हम कह सकते हैं कि 30 मिनट्स भी पूरे नहीं होते। आप जब एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट करते हैं तो तकरीबन 10 मिनट तक पूरे हो चुके होते हैं। तो इन 20 मिनट्स में ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारी सिस्टम्स की पूरी एग्ज़ामिनेशन करें, ठीक है? अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है जो सबसे आपने 2 चीज़ों पे फ़ोकस करना है। सबसे पहली चीज़ जिस पे फ़ोकस करना है कि आपने जनरल फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन को पूरा करना है। ठीक है? उसमें कोई भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आप हेड टू टो वाली स्कीम फ़ॉलो करते हों, चाहे आप हैंड से स्टार्ट करते हैं और फिर आप जो है वो आगे प्रोसीड करते हैं, दोनों तरीके से आपने जीपी पे कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। वाइटल्स, सब वाइटल्स आपने उसको पूरी तरह कंप्लीट करना है। एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ जिस पे हमारे एग्ज़ामिनर्स जो फ़ोकस करते हैं और जिस पे शायद वो मार्क्स कट भी करते हैं, वो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर हिस्ट्री you have to localize the system। लाइक अगर आपके पास पेशेंट एब्डोमिनल पेन के साथ आ रहा है या लूज स्टूज के साथ आ रहा है, ठीक है, और अगर आप जो है वो एग्जामिनेशन में आपने रेस्पिरेटरी या प्रिकॉर्डियम एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया, ये तो एक सिंपल सी कंप्लेन है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप पेशेंट के लिए मतलब लाइक मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट में लोकलाइज करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपने कौन सी सिस्टम को पहले करना है और पूरा करना है। अ, 1 मिनट। ओके। सो आपने सबसे पहले लोकलाइज़ करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर हिस्ट्री, और जिस सिस्टम को भी आप लोकलाइज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लूज़ टूथ के साथ आ रहा है या एब्डोमिनल पेन के साथ आ रहा है, तो ऑब्वियसली द सिस्टम विल बी एब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन। तो एब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन को आपने पूरा करना है। अच्छा, लाइक फ्रॉम द इंस्पेक्शन आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं टिल ऑस्कल्टेशन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो लोकलाइजिंग सिस्टम हो, वो 1 के बजाय 2 हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेंट के साथ आ रहा है, तो इट कैन बी ड्यू टू रेस्पिरेटरी कॉज़, इट कैन बी ड्यू टू एनी कार्डियोवैस्कुलर कॉज़। तो आप दोनों सिस्टम्स को लोकलाइज़, आपके पास लोकलाइजिंग सिस्टम 2 हैं एटलीस्ट। एनीमिया भी है जो कि आपके पास जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के अंदर कवर हो जाएगा। लेकिन इन दोनों सिस्टम्स को आपने पूरा-पूरा करना है फ्रॉम इंस्पेक्शन टिल ऑस्कल्टेशन। जब आप अपने लोकलाइजिंग सिस्टम को पूरी तरह कर लें, सारे स्टेप्स फॉलो कर लें, तो आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम बचेगा। अब उस शॉर्ट टाइम के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारे सिस्टम्स को पूरा-पूरा करें। लाइक अगर हम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की बात करें, तो वो पूरा करना मोटर, सिस मोटर है, सेंसरी है, गेट चेक करना है, सेरिबेलर है, क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है, फंडोस्कोपी, ये सब कुछ करना इम्पॉसिबल है। इन 5 टू 10 मिनट्स आपके पास बचते हैं। तो हमारी तरफ से टिप ये है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा करते भी होंगे, कि आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन को पूरा कंप्लीट किया, आपने लोकलाइजिंग सिस्टम की एग्जामिनेशन को पूरा कंप्लीट किया, और उसके बाद आपने बाकी सिस्टम्स को सिर्फ स्क्रीन करना है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मेरे पास सीलियक डिजीज़ का पेशेंट आ रहा है, या मेल एब्जॉर्प्शन का फॉर एग्जांपल पेशेंट आ रहा है, डायरिया के साथ आ रहा है, क्रॉनिक डायरिया के साथ, तो मैंने जीपी पूरा कर लिया। ऑब्वियसली अगर मैं उसके अंदर रैश भी देख लिया होगा मैंने, अगर फॉर डर्मेटाइटिस हेर्पेटिफॉर्मिस, तो स्किन की एग्जामिनेशन उसके अंदर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने एब्डोमेन तो पूरा कर लिया। उसके बाद आप सारे सिस्टम्स को
लोकलाइज़ सिर्फ़ स्क्रीन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि आपने अपने डिफरेंशियल्स में क्रोनिक डायरिया में सिर्फ़ सीलिएक नहीं रखा होगा, हो सकता है आपने ट्यूबरक्लोसिस रखा हो, आपने लिम्फोमा भी रखा हो। तो आप जो है वो चेस्ट सिर्फ़ रेस्पिरेटरी की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ़ आप स्टेथ रख के पोस्टीरियर चेस्ट को ऑस्कल्टेट कर लें। एट लीस्ट आप सिर्फ़ पोस्टीरियर चेस्ट को ऑस्कल्टेट कर लें। आपने स्क्रीन और उसका वोकल रेजोनेंस चेक कर लें। तो एग्ज़ामिनर को ये अंदाज़ा होगा कि फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपने उसको स्क्रीन कर लिया एटलीस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम को। फिर आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी इसी तरह जाएँ क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है ट्यूबरक्लोसिस के अंदर या और भी किसी डिसऑर्डर्स के अंदर तो आपने ऑस्कल्टेट कर लिया इन ऑल 4 एरियाज़। अच्छा, अब न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं। यूजुअली हमारे पास ऐसे केसेज़ जिसमें न्यूरोलॉजिक ज लाइक न्यूरो के जो केसेज़ नहीं होते, जो बाकी केसेज़ होते हैं, उनके अंदर हम पूरा सीएनएस का एग्ज़ामिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है? उसके लिए आपके पास सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपने जब बाकी सिस्टम्स को स्क्रीन कर लिया, आपने अब क्या करना है, आपने अपने पेशेंट से कहना है कि आप मुझे चल के दिखाएँ। इससे क्या होगा आपने अपने पेशेंट को खड़ा किया, वो चला, सो उससे 2-3 चीज़ें चेक हो गईं। ये भी पता चल गया कि उसका मोटर सिस्टम इंटैक्ट है, ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उसका गेट कैसा है, ठीक है? और तीसरी चीज़ कोई एटेक्सिया तो नहीं है। जैसे अगर हम बात करें सीलिएक डिज़ीज़ या किसी मेल एब्ज़ॉर्प्शन के पेशेंट के अंदर, तो उसके अंदर विटामिन बी12 डेफ़िशिएंसी हो सकती है, विटामिन ई डेफ़िशिएंसी भी हो सकती है ड्यू टू डेफ़िशिएंसी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, तो उसकी वजह से एटेक्सिया हो सकता है। बी12 डेफ़िशिएंसी की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। तो आपने पेशेंट को चला के देख लिया, ठीक है? चला के विटामिन डी डेफ़िशिएंसी की वजह से प्रॉक्सिमल मायोपैथी हो सकती है। आपने उसको चला के देख लिया, उसका गेट का अंदाज़ा हो गया आपको कि कोई एटेक्सिया तो नहीं है। आपने उसको चला के देख लिया, उसका मोटर सिस्टम इंटैक्ट है, उसका एक ग्रॉस आइडिया आपको हो गया। अच्छा, अब आप पेशेंट को वापस बिठाने से पहले आपने उसका गावर्स चेक कर लिया। गावर्स चेक कर लेंगे तो ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई प्रॉक्सिमल मायोपैथी तो नहीं है ड्यू टू एनी डेफिशिएंसीज़, एनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। उसके बाद अब आपने पेशेंट को बिठा दिया। अगर आपको लगता है कि आपका जो सिस्टम है सॉरी जो आपका केस है, उसमें एज़ सच अभी तक आपको कोई क्लू नहीं मिला है फॉर एनी पेरिफेरल न्यूरोपैथी और आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो आप सेंसरी पार्ट को स्किप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आपने पेशेंट को बिठाया, आपने उसके जो लाइक जॉइंट पोजीशन या वाइब्रेशन सेंस आपने चेक कर ली तो इससे या पिन प्रिक चेक कर लिया तो इससे आपकी ग्रॉस सेंसरी एग्जामिनेशन हो गई और उसके बाद आपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि एग्जामिनर्स आपसे सुनना चाहते हैं दैट इज़ फंडोस्कोपी। हम ये जानते हैं कि जो मेडिसिन के रेजिडेंट्स होते हैं वो फंडोस्कोपी में इतने अच्छे नहीं होते और यूजुअली फंडोस्कोप लेते ही नहीं है, वो सिर्फ एग्जाम के टाइम पे हम बोरो कर रहे होते हैं। तो फंडोस्कोपी लेकिन आपने एग्जामिनर से कहना है कि इन द एंड आई वुड लाइक टू डू फंडोस्कोपी। अगर वो आपको अलाउ करे तो अब आपने उनसे कहना है कि मैं चाहूँगा कि द आइडियल सिचुएशन के आप जो है वो लाइट्स क्लोज हों ताकि मैं प्रॉपर्ली जो है वो फंडोस्कोपी परफॉर्म कर सकूँ। क्या एग्जामिनर्स को भी आइडिया होता है कि मेडिसिन के जो रेजिडेंट्स हैं उनको फंडोस्कोपी इतनी अच्छी नहीं आती। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि क्या आपको टेक्नीक आती है, आपको फंडोस्कोप पकड़ना आता है। तो एटलीस्ट आप फंडोस्कोप को पकड़ने की या जो उसकी टेक्नीक है उसको देखने की उसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है इन फंडोस्कोपी और एक वैसे भी इन योर लॉन्ग केस बी रियल एंड बी ऑनेस्ट। अगर आपको फंडोस्कोपी में जैसे आपको नहीं आती है और आपके पास ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, तो जो रेयर चीज़ें हैं, जो रेयर फाइंडिंग्स हैं कि आप कहें कि मुझे कोरोइड ट्यूबरकल्स नज़र आ रहे हैं, तो इन चीज़ों पे नहीं जाएँ क्योंकि ये एग्ज़ामिनर्स जो है वो इससे अंदाज़ा उनको होगा कि शायद ये केस आपने देखा हुआ है, ठीक है? तो वो बात करें जो कि रियल हो, जो कि प्रैक्टिकल हो और जिसमें आपकी ऑनेस्टी नज़र आए। हमारे यहाँ पे लॉन्ग केस में आई डोंट नो कि जो सीपीएसपी का क्राइटेरिया है उसमें एथिक्स के कितने मार्क्स हैं या कोई मार्क्स हैं भी या नहीं। लेकिन जैसे इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स में होते हैं, लेकिन हमारे जो एग्ज़ामिनर्स हैं वो कुछ-कुछ पॉइंट्स पर आपकी जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उसको भी देख रहे होते हैं, कि आप पेशेंट को कितना कंफर्टेबल रख रहे हैं, आप पेशेंट से कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं और आप उसका जो है वो ख़्याल रख रहे हैं लाइक आप उसको बार-बार उठा रहे हैं, बार-बार बिठा रहे हैं, तो उस चीज़ को भी आपको अवॉइड करना है।
और सेकेंडली ये कि आप खुद कितने ऑनेस्ट हैं। एक डॉक्टर जब तक खुद ऑनेस्ट नहीं होता तो वो ऑब्वियसली आगे जो है वो इतना प्रॉपर डिलीवर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आप वो चीज़ ना बोलें जो आपने नहीं देखी। या जो रेयर फाइंडिंग्स हैं उनको आप ना बताएँ। आप सिर्फ़ ये कह सकते हैं कि आई कैन एप्रिशिएट रेड रिफ्लेक्स, ठीक है? और मैं इससे ज़्यादा जो है वो एप्रिशिएट नहीं कर पा रहा। तो जो एग्ज़ामिनर्स हैं वो आपकी इस ऑनेस्टी को लाइक करके आपको इसके मार्क्स दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसी कोई फाइंडिंग बता दी जो कि बहुत रेयर है, लाइक आपने कोरवाइड ट्यूबरकल्स बोल दिए, जो कि एक थ्योरेटिकल चीज़ है, शायद हम में से किसी को भी शायद नहीं देखने आते होंगे। सो ये चीज़ जो है वो एग्जामिनर को आइडिया दे सकती है कि शायद इसने ये केस देखा हुआ है और इस पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सो ऑनेस्ट रहना और रियल रहना और नॉर्मल रहना, दिस इज़ वन ऑफ द की टू पास द एग्ज़ाम। ठीक है। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि एग्जामिनेशन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन को पूरा कंप्लीट करना है। आपने जो लोकलाइजिंग सिस्टम है उसको आपने पूरा कंप्लीट करना है और उसके बाद आपने बाकी सिस्टम्स को सिर्फ स्क्रीन करना है। अब ये डिपेंड करता है केस टू केस। हम यहाँ पर जो डेमो क्लास है उसमें ऑब्वियसली एग्जामिनेशन के सारे स्टेप्स हम नहीं बता सकते। लेकिन क्योंकि केस टू केस ये डिपेंड करता है कि किस एग्जामिनेशन को किस हद तक आपने लेकर जाना है। लेकिन जब हमारे जो रेगुलर सेशंस होंगे, उसमें फिर हम आपको वहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे कि ये चीज़ आपको करनी थी या ये पॉइंट आपने मिस किया। जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन वैसे ही है जैसे कि हम 3rd ईयर, 4th ईयर से करते हुए आ रहे हैं कि आपने जनरल लुक देखना है। जनरल लुक इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा जो पेशेंट की सराउंडिंग्स हैं, उस पे भी नज़र रखनी चाहिए। लाइक कोई वॉकिंग एड्स तो नहीं रखे हुए, ठीक है? पेशेंट को कौन-सी लाइन्स पास हुई हुई हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो हम यूजुअली रूटीन में देखते भी हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को फ़ोकस नहीं करते और जब हम अपना केस बताते हैं, तो हम उन उन बातों को बताते नहीं हैं। लेकिन हमारे जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं वो इस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं कि आपने इन बातों को देखा या नहीं, आपने लाइन्स पे फ़ोकस किया या नहीं किया। आपका अगर पेशेंट लोअर लिम्ब वीकनेस के साथ आ रहा है, तो आपने देखा या नहीं देखा कि उसका चलें आपने कैथेटर तो देख लिया, यूरिनरी कैथेटर, आपने देखा या नहीं कि उसका डीएल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। हो सकता है वो जीबीएस का पेशेंट और उसकी प्लाज़्माफ़ेरेसिस हो रही हो। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, या कोई वॉकिंग एड्स तो नहीं रखे हुए उसके आस-पास। तो इन चीज़ों को फ़ोकस करें, इन चीज़ों को जो पेशेंट की सराउंडिंग्स हैं, उनको लाज़मी देखें। बाकी ये जो एग्ज़ामिनेशन है, हम यहाँ पे इस वक़्त डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा पार्ट हो जाएगा। जनरल फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन हम हैंड से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हमारी यूजुअल प्रैक्टिस होती है और फिर हम उसको प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स जो है वो लाइक हेड टू टो, फिर हम हेड टू टो की स्कीम फ़ॉलो करते हैं। बस ये है कि जब जिस कोई सा भी केस हो, जब आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करें फ्रॉम द हैंड्स, ठीक है? फिर जब आप पल्स चेक कर लेंगे उसके अंदर अलोंग विथ नॉन विथ सब वाइटल्स, जब आप फोर आर्म पे आएँ तो आप कोशिश करें कि आपने बीपी कफ जो है वो एक तरफ एक हाथ पे बाँधा और दूसरी तरफ आपने थर्मामीटर रख दिया एक्सिला में। जब तक आप बीपी चेक करेंगे तब तक आप पेशेंट का जो है वो टेम्परेचर भी चेक हो जाएगा और उसके बाद आप आगे प्रोसीड करें टुवर्ड्स एग्ज़ामिनिंग द अदर थिंग्स। तो ये एक चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो हम रूटीन प्रैक्टिस में करते हैं। ओके, सिस्टमिक एग्ज़ामिनेशन जैसे कि मैंने अभी ये कहा कि हम केस टू केस डिस्कस करेंगे और ये डिपेंड करता है कि उसके सिस्टम को कितना करना है, ये भी केस टू केस डिपेंड करता है। अच्छा, नेक्स्ट अब मैं बात करना चाहूँगी जो हमारा लॉन्ग केस है उसके फॉर्मेट का। अच्छा देखिए, हमारा जो लॉन्ग केस होगा जैसे कि 1 मिनट, ओके। हमारा जो लॉन्ग केस है, इसका भी तकरीबन वही फॉर्मेट होगा जो कि एग्ज़ाम के अंदर हमारा फॉर्मेट होता है। हमारे पास क्योंकि एग्ज़ाम की डेट फॉर सितंबर दैट इज़ आई थिंक लाइक 17th सितंबर से आपके पास सितंबर का सेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड फ्रॉम 13 ऑफ अक्टूबर, 13 या 14 से आपका अक्टूबर का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। हमारा प्लान ये था कि हमें लगता था कि शायद सितंबर के एंड तक एग्ज़ाम होगा तो हम एक कोर्स सितंबर तक कैरी करेंगे और फिर हम अक्टूबर में नेक्स्ट कोर्स रखेंगे। लेकिन
ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम हमने ये प्लान किया कि हम इस सैटरडे से इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं, एंड देयर दिस विल बी अ वीकेंड कोर्स दैट इज़ फॉर सैटरडे एंड संडे। बजे पाकिस्तान टाइम इसको स्टार्ट करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू वाइंड अप इट इन 2 to 2.5 hours मैक्सिमम। ठीक है, अब हमारा फॉर्मेट ये होगा कि हमारे पास जो है वो 4 एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होंगे। ठीक है, और जैसे कि हमने अपने लास्ट कोर्सेज़ के अंदर किया है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास इस सेशन के अंदर भी कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने हमारा लास्ट कोर्स भी अटेंड किया होगा। सो उसका फॉर्मेट ये होगा कि 4 एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, और देयर विल बी अ टोटल ऑफ 12 लॉन्ग केसेस। ये आई थिंक किसकी आवाज़ आ ओके। देयर विल बी अ टोटल ऑफ 12 लॉन्ग केसेस जो कि हमने डिज़ाइन किए हैं, हमने बनाए हैं, और ये वो केसेस हैं जो कि आपके पास यूजुअली इनकाउंटर होते हैं इन योर एग्ज़ाम। ठीक है, कॉमन केसेस भी हैं, कुछ रेयर केसेस भी हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि देयर इज़ अ गुड मिक्स एंड मैच ऑफ ऑल द केसेस, और उनको हमने देखें, हमने इस तरह का कोई फॉर्मेट नहीं रखा कि आप कोई हिस्ट्री लेकर आ जाएं और वो आके आप हमसे डिस्कस करें और हम उसके अंदर जो है वो मिस्टेक्स निकालेंगे, या हम कहें कि भाई हमारे पास जो है वो हमने आपको एक वो दे दिया कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे, इसके क्या क्या क्वेश्चंस होंगे। हमने कोशिश की है कि हम इसको कोशिश करें कि बिल्कुल एग्जाम से रियल एग्जाम से के बिल्कुल जैसा रखें, रियल एग्जाम के जैसा रखें। अब इसमें ऐसा है कि 4 एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, और वीकली आपके पास 2 पार्टिसिपेंट्स जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह हर एक्टिव पार्टिसिपेंट के हिस्से में 3 लॉन्ग केसेस आते हैं फॉर द टोटल कोर्स। ठीक है, जो कैंडिडेट सितंबर, अच्छा हम लिसनर स्लॉट्स की बात करें, तो जो कैंडिडेट सितंबर वाले में अपेयर हो रहे हैं, अभी आई थिंक रिजल्ट अनाउंस शायद नहीं हुआ है। जब आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, और आप लोग रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट करवा सकते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि लाइक सिर्फ इनको क्लिनिकल्स देना है, तो उनका भी मोस्ट लाइकली आने वाला होगा या आ गया होगा कि सितंबर या अक्टूबर में कब उनका एग्ज़ाम है। सो आप रजिस्टर करवाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एग्ज़ाम सितंबर में है, तो आप हमें स्लिप दिखा सकते हैं, अपनी जो भी एग्ज़ाम एडमिट कार्ड है, एंड आई विल रिफंड यू द रिमेनिंग अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट बन रहा होगा लाइक 2000। ठीक है, तो अगर आप सितंबर के कैंडिडेट्स हैं, तो यू कैन हैव अ टोटल ऑफ 8 सेशंस बिफोर द एग्ज़ाम, और अगर आप अक्टूबर के कैंडिडेट्स हैं, तो आप फिर पूरा कोर्स आराम से ले सकते हैं, दैट विल कंप्राइज ऑफ अबाउट 12 सेशंस। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास एक्टिव पार्टिसिपेंट वो आते हैं कि अगर 2 एक्टिव पार्टिसिपेंट आते हैं फॉर सितंबर, एंड 2 ऐसे हैं जो अक्टूबर में अटेम्प्ट है जिनका, तो हम कोशिश करेंगे कि हम पहले उनसे परफॉर्म कराएं जो कि सितंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उसके बाद हम अक्टूबर वालों से परफॉर्म कराएं। ये तो एक ये वाली चीज़ हो गई। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसकी जो रिकॉर्डिंग्स होंगी वो आपको शेयर की जाएंगी वाया गूगल ड्राइव लिंक। ठीक है, हमने अभी तक लास्ट जो हमने एग्ज़ाम करवाया था, हमने कोई उसके अंदर वो नहीं लगाई है, कोई लिमिट नहीं लगाई है कि ये सिर्फ़ एग्ज़ाम तक ही वैलिड होंगी और उसके बाद नहीं होंगी। हमारा मकसद आप लोगों को फैसिलिटेट करना है, जितना मैक्सिमम आपको फैसिलिटेट कर सकें। तो ये वीडियोज़ आपके पास या रिकॉर्डिंग्स आपके पास हमेशा के लिए अवेलेबल होंगी। ठीक है, उसमें कोई लिमिट, कोई प्राइवेसी नहीं लगी हुई। ठीक है, अच्छा तीसरी बात ये है कि अब मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ। हम इस तरह करेंगे कि हमने एक केस पूरा प्रॉपर प्रिपेयर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने केस प्रिपेयर किया हुआ है फॉर क्रॉनिक डायरिया। ठीक है, पूरी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की पूरी चेकलिस्ट हमने बनाई हुई है। अगर अभी टाइम मिलता है तो मैं आपको लास्ट जो हमारा कोर्स हुआ था उसकी एक चेकलिस्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने उसको किस तरह फॉरवर्ड कैरी ऑन किया था। सॉरी, तो उसके अंदर ऐसा है कि फर्स्ट 30 मिनट एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है फॉर द डे, और वो 30 मिनट्स के लिए उसको टाइमर लगा के दिया जाएगा ऑन द जूम टाइमर। अच्छा, उन 30 मिनट्स के अंदर जो है वो सिर्फ एक 1 लाइन सेंटेंस बता दिया जाएगा कि भाई पेशेंट जो है वो 30 ईयर्स ओल्ड मेल है और वो लूज टूथ के साथ आया है, बस। उसके बाद जो भी एक्टिव पार्टिसिपेंट है वो हम में से मैं या डॉक्टर नज़ीर कोई एक हिस्ट्री और एक जो है वो एग्जामिनेशन को कैरी ऑन करेंगे।
तो ऐसा है कि फर्स्ट 30 मिनट्स में वो जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो फॉर्मेट आपको बताया जा रहा है, जो आज बताया जा रहा है, और आपको जब आप कोर्स में होंगे तो बीच में भी आपको डिफरेंट चीज़ें शेयर की जाएँगी। लाइक फॉर्मेट शेयर किया जाएगा, चेकलिस्ट शेयर की जाएगी, और उस चेकलिस्ट को देखते हुए आप उसके अंदर क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हैं, और शुरू में बेशक आप देख के लें और उसके बाद आप जो है वो उसको प्रैक्टिस करते रहें, तो वो आपके रिफ्लेक्सेस बन जाएँगे। अच्छा, उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि आपने हिस्ट्री और एग्जामिनेशन कैसे किया है। फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स जो आपका जो कैंडिडेट है, जो एक्टिव पार्टिसिपेंट है, वो हिस्ट्री लेगा। उसके बाद हम आप एक पर्टिकुलर टाइम पर उससे कहेंगे कि अब आप एग्जामिनेशन की तरफ आएँ। यूजुअली हमारे पास जब रियल एग्ज़ाम में होता है, तो मैंने जैसे बताया कि 8 टू 9 मिनट्स पर आपने एचपीसी के बाद पास्ट हिस्ट्री स्टार्ट कर देनी है अलोंग विद एग्जामिनेशन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि रियल पेशेंट नहीं है, तो हम इसको हाफ एंड हाफ या आई थिंक 70 मिनट्स तक हम इस तरह कर लेते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि अब आप एग्जामिनेशन करें। एग्जामिनेशन ऐसे होगी कि हमने केस बनाया हुआ है, हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर जो है वो विजुअल्स रखें, हम ऑडियो ऑडियो विजुअल्स रखें। अगर कोई मरमर है फॉर एग्जांपल, या कोई साउंड्स हैं लाइक कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम की, या कोई पेरिकार्डियल रब है फॉर एग्जांपल, तो हमने कोशिश की है कि उसको उसकी आपको ऑडियो या वीडियो जो भी है वो आपको दिखाई जाए। इसी तरह हम आपको फॉर एग्जांपल सीलिएक डिजीज़ का पेशेंट है, अब आप जब तक एग्ज़ामिन करेंगे जैसे कि हमने हैंड से एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट की। अब आप जब कहेंगे कि जो भी एक्टिव पार्टिसिपेंट है वो कहेगा कि मैं रैश देखना चाहता हूँ ऑन द एल्बोज़ या ऑन द फोरआर्म्स, ठीक है? तो हम आपको ये नहीं बताएँगे कि दिस इज़ द रैश ऑफ डर्मेटाइटिस herpetiformis। हम कोशिश करेंगे कि उसकी कोई विजुअल इमेज आपको दिखाई जाए, ताकि आप उसको जो कि बिल्कुल रियल टू मतलब नेक्स्ट टू रियल एग्ज़ाम हो, ताकि आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि ये कौन-सा रैश हो सकता है। इस तरह करके हमने काफ़ी सारी ऑडियो विजुअल्स अपने कोर्स के अंदर रखी हैं, कि सिर्फ़ हमें बोलना ना हो, बाकी जो भी कैंडिडेट है वो उन चीज़ों को भी देख सके, क्योंकि जितना आप ऑडियो विजुअल को देखते हैं, उतनी ज़्यादा जो है वो आपकी गेनिंग होती है। सो इस तरह करके फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स जो है वो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 2 टू 3 मिनट्स आपको दिए जाएँगे फॉर कंपोजिंग योरसेल्फ एंड फॉर समराइजिंग योर केस। उसके बाद जो नेक्स्ट 30 मिनट्स हैं उनको हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि जिस तरह रियल एग्ज़ाम में होता है, जब रियल एग्ज़ाम होता है तो 2 एग्ज़ामिनर्स होते हैं। तो हम यहाँ पर यही करते हैं कि सबसे पहले आपने जो है वो अपना केस बताना है, फिर डिफरेंशियल्स, फिर हम आपसे उससे अकॉर्डिंगली वाइवा लेते हैं, लाइक इन्वेस्टिगेशंस हैं, मैनेजमेंट है, रीसेंट एडवांसमेंट्स हैं, और हो सकता है कि काउंसलिंग भी करवाई जा सके अगर इतना टाइम हो। एक बहुत इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे जो कैंडिडेट्स एक मिस्टेक करते हैं, वो ये कि फर्स्ट 30 मिनट्स को बेशक उन्होंने बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया हो, और क जो हमारे एग्ज़ामिनर्स होते हैं वो उसमें ही पिक कर लेते हैं कि हमें किसको पास करना है, किसको पास नहीं करना, ठीक है? लेकिन जो नेक्स्ट 30 मिनट्स होते हैं वो भी आप ही के 30 मिनट्स हैं, ठीक है? अब होता ये है कि आपको जब कहा जाता है कि आप अपना केस प्रेज़ेंट करें, तो यूजुअली आप उस केस को बिल्कुल वैसे ही शुरू हो जाते हैं जैसे आप 3rd ईयर, 4th ईयर, फाइनल ईयर में 4th ईयर फाइनल ईयर के अंदर स्टार्ट हो जाते थे, कि बिल्कुल सारी पूरी हिस्ट्री आपने बता दी, और 15 मिनट आपके जो है वो आपके केस प्रेज़ेंटेशन में ही लग गए। जितना शॉर्ट आप अपनी केस प्रेज़ेंटेशन को रखेंगे, लाइक कोशिश करें कि 5 टू 8 मिनट्स मैक्सिमम है जिसमें आपने अपने केस को समराइज़ कर लेना है। इम्पोर्टेंट पॉज़िटिव, इम्पोर्टेंट नेगेटिव फाइंडिंग्स आपने बता देनी है उसके अंदर। ताकि एग्जामिनर के पास टाइम हो कि वो आपसे फर्दर क्वेश्चंस पूछ सके, आपके डिफरेंशियल्स को जस्टिफाई करने का टाइम हो आपके पास, ठीक है? आपके पास टाइम हो कि आप उसको इन्वेस्टिगेशंस, उसके ट्रीटमेंट, उसकी रीसेंट एडवांसमेंट्स तक जा सकें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएँगी अगर आपने उसी केस की प्रेज़ेंटेशन में ही 15 मिनट लगा दिए। तो इस चीज़ पे ख़ास तौर पे फ़ोकस करें कि अपना जो केस की जो प्रेज़ेंटेशन है उसको 5 टू 7 या 8 मिनट्स में मैक्सिमम कंप्लीट कर लें। सारी पूरी कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट नेगेटिव पॉइंट्स इन द हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, बस वो बताएँ। अच्छा, और उसके बाद आप डिफरेंशियल्स पर आएँ। अच्छा, अब डिफरेंशियल्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 3 डिफरेंशियल्स बनाएँ। इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है? इससे कम ना बनाएँ।
अच्छा, ये हो सकता है कि जो केस हो वो लाइक सीलिएक डिज़ीज़ का, और आपने जो हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन की है उसके अकॉर्डिंगली आपने सीलिएक को फर्स्ट पे नहीं रखा, थर्ड पे रखा है। फर्स्ट पे हो सकता है कि आपने टीबी को रखा हो, इंटेस्टाइनल टीबी को रखा हो या आईबीडी को रखा हो। लेकिन जो भी आपने डिफरेंशियल रखा हो, आपको उसको जस्टिफ़ाई करना आना चाहिए। चाहे वो फर्स्ट पे रखा हो, चाहे थर्ड पे रखा हो, आपके पास वो सारे पॉइंट्स होने चाहिए जिस पर आप फ़ेवर कर सकें कि ये इसका केस है और मैंने इसको फर्स्ट पे क्यों रखा है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं वो मतलब इस बात को माइंड बहुत ज़्यादा करते हैं कि आपने डिफरेंशियल तो रख दिया नंबर 1 पे, लेकिन आप उसको जस्टिफ़ाई नहीं कर सके। तो इससे भी ये उनको एक क्लू जाता है कि शायद इसने ये केस देखा हुआ है, ठीक है? तो आप कोशिश करें कि आपका डिफरेंशियल जो है वो उस लिस्ट के अंदर हो जो कि एग्ज़ामिनर के पास है, और आप वो सारे पॉइंट्स दे सकें जिसको आप जस्टिफ़ाई करें। यहाँ पर वही बात है कि जो आपने किया है, जो आपने देखा है, जो आपने सुना है, पूछा है पेशेंट से, आप अपनी हिस्ट्री में वही बातें फ़ोकस करें। कभी-कभी ऐसा होता है कि हिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, हम नहीं पूछते, ठीक है? और जब आप अपना समराइज़ कर रहे होते हैं ना केस को, तो क्यों थ्योरेटिकल नॉलेज की वजह से आप वो पॉइंट्स भी उसके अंदर ऐड करते रहते हैं कि मैंने ये पूछा था या मैंने ये पॉज़िटिव या नेगेटिव पॉइंट्स पूछे थे। कोशिश करें जो चीज़ आपने नहीं पूछी है या नहीं परफ़ॉर्म की है, वो आप अपने केस में नहीं मेंशन करें, ठीक है? कुछ ये वो चीज़ें हैं जिस पे मतलब लाइक एग्ज़ामिनर्स जो है वो पॉइंट किए हुए बैठे हुए होते हैं कि मतलब लाइक हमें इन चीज़ों को देखना है और इन चीज़ों पे इनके मार्क्स डिडक्ट करने हैं। क्योंकि हमारा पासिंग रेशियो आप सबको पता है कि हमारा पासिंग रेशियो मेडिसिन का ओवरऑल बहुत कम है। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को लाज़मी फ़ोकस करें। उसके बाद सिंपल है कि डिफरेंशियल्स को आपने जस्टिफ़ाई किया, फिर इन्वेस्टिगेशंस होंगी, फिर मैनेजमेंट होगी और फिर उसके बाद ये एंड हो जाएगा। अच्छा, ये तो आप लोगों की तरफ से जो भी एक्टिव पार्टिसिपेंट है वो इस 1 घंटे में सिर्फ़ उसी की पार्टिसिपेशन होगी और कोई लिसनर या कोई एक्टिव पार्टिसिपेंट इसमें नहीं बोलेगा। उसके बाद हम आपसे थोड़ा-सा ब्रेक लेंगे फॉर 5 3 टू 5 मिनट्स का। उसमें हम आपके जो भी हमने चेकलिस्ट है जो कि हम इस दौरान देख रहे होंगे, हमने वो पूरी चेकलिस्ट हम बना लेते हैं और उसमें लाइक उसको देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। फिर वो चेकलिस्ट अलोंग विथ योर रिज़ल्ट आपको शेयर की जाती है। हम एक प्रॉपर रिज़ल्ट एक प्रॉपर मार्कशीट आपसे शेयर करेंगे जिसमें ये सारे पॉइंट्स फ़ोकस होंगे कि आपके आपके पास जो इन रिटन कि आपको कौन-कौन सी चीज़ों पे फ़ोकस करना है, आप पास हैं या फ़ेल हैं अल्टीमेटली ये भी बताया जाएगा। लेकिन वो चेकलिस्ट पे डिस्कस की जाएगी। उस चेकलिस्ट में आपने किस पॉइंट पर कौन-सी गलती की है, आपने कौन-सा क्वेश्चन पूछना चाहिए था, कौन-सा क्वेश्चन नहीं पूछा है वो आपसे डिस्कस किया जाएगा या इस क्वेश्चन को किस तरह पूछना चाहिए था। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएँगे आपकी गलतियाँ उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली जो कि हमने एक प्रॉपरली पूरी डिज़ाइन की हुई है हर, और ये केस टू केस है। ये चेकलिस्ट जैसे केस आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपसे वो शेयर की जाएगी उस वक़्त, और फिर इन द एंड जो है वो आपको फिर मार्क्स दिए जाएँगे। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट होगा। देयर विल बी अ टोटल ऑफ 12 केसेस जैसे कि मैंने मेंशन किया, और हमारी कोशिश है कि हम सारे इम्पोर्टेंट लॉन्ग केसेस को इसके अंदर कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा, हमारी रजिस्ट्रेशंस ओपन है और आप लोग मुझे या डॉक्टर नज़ीर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट डे तक रिकॉर्डिंग बिफोर ईच सेशन तो नहीं ऑब्वियसली शेयर की जाएगी ना। सेशन के पहले हम शेयर नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस वक्त एक कंप्लेन बताएंगे। लेकिन चेकलिस्ट जो एक वो वाली चेकलिस्ट है लाइक जिसके अंदर सिर्फ ब्लैंक चेकलिस्ट है जिसमें हमने लिखा हुआ है कि ये पॉइंट्स हैं, वो तो शेयर कर देंगे हम आपको। लेकिन उसके बाद सॉल्व लाइक अगर आपके पास ब्लरिंग ऑफ विजन है तो उसके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस का जिक्र कर रहे थे डॉक्टर नज़ीर, वो इसके अंदर हम जो है वो मेंशन करेंगे। मैं भी आपको दिखाती हूँ, अगर हो सकता है कि मैं आपको शेयर कर दूँ अगर पॉसिबल हुआ, कि वो हमारी चेकलिस्ट कैसी होती है। उसमें एग्ज़ामिनेशन की भी है और इसके अंदर ये हिस्ट्री की भी है। अच्छा, उसके बाद जो है वो उसके बाद फिर मतलब जब आपका हम एनालिसिस कर लेंगे उसके बाद हम आपको चेकलिस्ट शेयर करेंगे। डॉक्टर नज़ीर, आर यू देयर? उम, आई थिंक 1 मिनट वेट कीजिएगा।
ओके, सो दिस इज़ अ कोर्स फॉर्मेट। रिज़ल्ट जब आप लोगों का अनाउंस हो जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन अभी करवा सकते हैं, बाद में भी करवा सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप देखें, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वो अभी भी रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 1 मिनट। अच्छा, ये इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग केसेस हैं जो कि हमने शेयर किए हुए हैं। ये एक लिस्ट है लॉन्ग केसेस की। उसके बाद एंड लास्ट थिंग, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि जिन्होंने अभी थ्योरी का एग्ज़ाम दिया होगा एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट। सो थोड़ा मैं हम अपनी बुक को इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे। अब अब तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको जानते हैं एंड दिस इज द थर्ड एडिशन ऑफ आवर बुक एंड इट इज़ अवेलेबल ऑल ओवर पाकिस्तान विद द नेम ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ टोक्स। ये आपको विंको पब्लिशर के पास मिल जाएगी और आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये बुक होगी और हमें बहुत सारे रिव्यूज़ मिलते हैं फॉर एप्रिसिएशन ऑफ दिस बुक। सो मैं इसको भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी कि ये फर्स्ट टाइम हमने 2023 में स्टार्ट किया था और 2025 में हम इसका थर्ड एडिशन लेकर आए हैं। और इसके अंदर सिर्फ टोक्स के स्टेशंस नहीं हैं, इसके अंदर आपके पास पिछले 5 to 6 ईयर्स के आई थिंक, या हो सकता है एक से एक आध साल ज़्यादा भी हो, आपके पास जो पास टोक्स के स्टेशंस हैं वो भी हमने इसमें कवर किए हैं, हमने इसमें काउंसलिंग कवर की है। इस दफ़ा हमने इसके अंदर एक रिसर्च का सेक्शन भी कवर किया है क्योंकि अब आप लोगों के पास जो टोक्स का स्टेशन है, उसमें एक रिसर्च का स्टेशन भी आता है और उसको भी हमने इसके अंदर कवर किया है। और इसके अलावा आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट का स्टेशन आता है टोक्स के अंदर, तो उसके अंदर अब एक चीज़ ऐड हो गई है कि अब आपने उसमें परफॉर्म भी करना है। तो हम ऑब्वियसली परफॉर्मेंस स्टेप्स इसमें मेंशन किए हैं, लेकिन वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो आपकी परफॉर्मेंस पे या यूट्यूब पे वीडियो देख के आप उसको देख सकते हैं। लेकिन ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि हमने इसके अंदर ऐड की हैं अलोंग विद द लास्ट एयर टोक्स एग्ज़ाम जो भी पार्ट है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। इसकी जो रिकॉर्डिंग है इस सेशन की, वो आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी विद द लिंक और आप जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह दिस विल बी अ फ्रूटफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ़ यू। हमने कोशिश की है कि प्राइस बहुत मिनिमल रखें, अफोर्डेबल रखें और हम कोशिश करते हैं कि इसमें जो है वो बेस्ट आपको डिलीवर करें विद ऑनेस्टी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच। ओके, नाउ वी आर एंडिंग द सेशन। अल्लाह हाफिज। अगर आपके पास किसी को कोई क्वेरीज हैं तो वो क्वेरी को आंसर पूछ सकते हैं। अच्छा, इसी तरह कोर्स होगा उसके अंदर जो लिसनर्स हैं उनके पास ये चांस होगा कि लाइक जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे या जब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसके अंदर वो क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हैं अगर उन्होंने कोई ऐसा केस देखा है लाइक इन इन योर प्रैक्टिस जिसको आप डिस्कस करना चाहें, वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।